Thanks to the MOC and the chairman of the branch, Santosh Agarwal ji, for providing this wonderful opportunity to interact with you and to show something which when I started in my life in practice, it was my boss who got searched. So I became from there compounder to doctor. It was in my articleship itself. Chairman of the branch, Santosh Agarwal ji, Tejinder Bhardwaj ji, Dinesh Agarwal ji, PC Jain Saab, Arun Gandhi ji, RS, my deliberation. I would like to tell you something about the exact how the events will take place and what is the background, why I have chosen for this particular play in the CA fraternity. Because what I find that neither the consultant nor the client is knowing these facts when search comes or survey comes. Survey comes very often, search comes, but these days the searches are also in large numbers. So they don't know anything about how to handle. And sometimes what happens that because it is felt that something is happening wrong, they try to violate the law, or they do not know their rights. Since they do not know their rights, so they are not in a position to exercise them. Similarly, it is the department, they over-exercise their powers, and also they do not know that how to handle the different situations. So we have tried to capture all those things which are happening, and since I am handling, since my articleship, this particular search and seizure, because my boss itself got searched, so I was the person who was doing something which I at that time was not knowing that these things are illegal, and you cannot in such circumstances you should not indulge yourself. But since at that time the guru was in my mind, so we have tried to work out something. So I have made all those things together, and then the meticulous points which are required to be seen there is being put in this play. Let me tell you, friends, this play, either the CA students or the chartered accountant themselves, they are playing. There is no professional artist, and all these, what I tried to do it, I have requested them this time that they will use most of the time Hindi. जैसे मैं भी अपनी प्रेजेंटेशन में मिक्स करके करने की कोशिश करूँगा, तो वो भी जो है उसको हिंदी में थोड़ा यूज़ करें, क्योंकि वो दिल पे सीधी उतरती है. इसलिए जो है मैंने उनको इस बार स्पेशली स्क्रिप्ट वगैरह दी है. हो सकता है कहीं हमसे गूफ अप हो जाए, कोई हो सकता है गलती हो जाए, कोई दूसरा कलाकार किसी दूसरी चीज़ को करे, बट कोशिश मैंने करी है और मैं ऐसा मानता हूं कि हम आपको रियल सिचुएशन बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द salient features. Because if I don't tell you about the salient features, then when you will face here, at that time you will not know what I am seeing. So I would like to tell you something brief about it. ये सच होती क्यों है और सच किस सिचुएशन में हो सकती है? There are 3 limbs, and normally the search is taken place according to the C. A and B are seldom used by the department. A says non-complies to someone under section 131(1) or notice under section 142(1) as to production of certain books of account or other document. Normally क्या होता है, नोटिस आता है
पहले जमाने में तो क्या करते थे, लड़के को भेज देते थे कि भेज जा वकील साहब को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया। अभी सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, स्कैनर लगे हुए, स्कैन करा और भेज दिया। उसके बाद कंसल्टेंट गया नहीं गया, क्या हुआ कैसे हुआ, nobody knows it, but I am telling you, somewhere in 2004 I have seen that the investigation wing has conducted a search because of the non-compliance of 131. So please do not treat these summons or notices under section 142(1) as ordinary things. They may result into search also. There was a sub-broker, he has been called and he didn't turn up. They sent him again a notice and he again didn't turn up. And what he has done, a blunder. The next time when the notice server, a inspector has gone to serve him the notice under section 131, so उसने ये बोला कि भाई साहब आप क्यों नहीं आए थे? तो बोला नहीं आते, जो करना कर लो। उन्होंने कर दिया। So be careful. The second, it is a draconian law. I am telling you, it is not there in other countries, but in our country it is there. Notice has been issued, चलिए कोई बात नहीं, पिछली बार दिए नोटिस इशू कर दिया, would be issued, सपना आना था कि मैं नोटिस इशू करूंगा, but such person has not, चलिए मैं पहुंचा नहीं कोई बात नहीं, might not produce books of account, ये भी सपना आना था कि नोटिस देते और मैं किताब प्रोड्यूस नहीं करता, तब भी मैं सर्च कर सकता हूं। Such are wide powers. And the last one, which is mostly used, the second one is not used at all because the department has to have certain checks and balances before they come, and they come into the violation of the rights of any citizen to live free, to conduct the business free. Possession of undisclosed money, bullion, jewelry or other valuable article or things whether wholly or partly undisclosed. This is the third form, and for everything they have to issue some form, and this is the form 45 which I will tell you, that is the base, that is the search warrant which is we called as a death warrant. जिस टाइम सर्च पड़ती है, अब आपको हम कोशिश करेंगे दिखाएंगे कि सर्च पे क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको तकलीफ है। सर्च किस कारणों से हो सकती है? अभी बिजनेसमैन भाई बैठे हमारे, इन कंसिक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अनडिस्क्लोज इनकम को या अनडिस्क्लोज एसेट्स को बताती है, अगर वो इंफॉर्मेशन लेके आदमी डिपार्टमेंट पे जाता है तो डिपार्टमेंट जो है उसको एक्शन लेके सर्च कर सकता है। रिक्वायरमेंट है लॉ की, आजकल उन्होंने कुछ बेसिक फंडामेंटल सर्कुलर्स के लिए कर रखा है कि 1 करोड़ से नीचे नहीं जाएंगे, बट दैट इज ओनली ए गाइड, दैट इज नॉट कंपल्सरी। दूसरा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? इफ दे वांटेड टू कम टू मी and they wanted to search me, what is the mandatory requirement? First, there has to be a reason to believe. एक केस आया पंजाब में कि जी फला डॉक्टर, उसकी बड़ी रोरिंग प्रैक्टिस है, बहुत सारी वेल्थ है, और वो इनकम टैक्स जो है सिर्फ जो है 1 लाख रुपए की दिखाता है। डिपार्टमेंट ने सर्च कर दी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, you should have credible evidence. There is a difference between a reason to believe and reason to suspect. If there is a reason to suspect, then in that case you can call him under section 131. You can call him for filing of the returns or filing of the particulars. But if you have a credible evidence, then you need to record that mandatory reason. A satisfaction note is also to be recorded. When I started my practice at that time, there was a very famous case which I handled, L.R. Gupta, Lala Ram Gupta. That case was scrapped by the High Court and by Supreme Court only on one ground, that the satisfaction note which was recorded, under which a reason to believe had been recorded, was not at all existing. This reason to believe and this satisfaction is a secret document which is not provided normally to the people. But since he was an advocate, he applied in the court, he knows that the reason to believe was wrong because this particular person is an advocate and he is having the lot of wealth. When the court ordered for the sealing of that reason to believe and satisfaction note,
they found what is written is absolutely false. It was written that there are one building which they have demolished it, and after demolishing they are collecting the money from the various people, and that money they are taking in number 2. Now the fact is this: when the court commissioner was appointed to verify this fact, the court commissioner has gone there and he gave the report in the writing to the High Court that, sir, this building has never been opened since last 3 years. There is only one electricity meter. It is existing. Only one चौकीदार lives. And I inquired from the चौकीदार. He said, sir, ये साहब लोग तो सिर्फ एक बार महीने में कोई आता है, वो भी इनका आदमी आते हैं, तनख्वाह देके चला जाता है. They are never bothered about it. Last 3 years ये बिल्डिंग खुली नहीं. 3-4 पड़ोसियों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी. सबने बोला सर परेशान है, मच्छर आ जाते हैं, ये हो जाता है, इसको गिरवा दो. The court says nothing doing. Anything which satisfaction has been recorded by a series of person. कैसे satisfaction record होती है हम आपको अपने प्ले में बताएंगे. कैसे डिपार्टमेंट को उसको अपनी जगह जगह पे प्रिकॉशंस लेने हैं. अब वो कितने लेते हैं ये टाइम की बात है या देखने वाली बात है, हम आपको बताएंगे. सो दीज आर द थिंग्स. कौन ऑथराइज ऑफिसर है? डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, additional director, additional commissioner, joint director, joint commissioner. These are the people, those who can give the authorization. जो लोग आपके सर्च वारंट को साइन करेंगे. बट दिल्ली के अंदर या हमारे किसी एरिया में आज की डेट में 2 ही लोग सर्च वारंट को साइन कर पाएंगे. या तो आपका डायरेक्टर जनरल साइन करेगा या डायरेक्टर साइन करेगा. और मेन सर्च हो गई, लॉकर सील होने, वो भी हम आपको अपने सीन में दिखाएंगे. लॉकर सीन करने के टाइम जो वो सर्च वारंट है जिसको छोटा सर्च वारंट कहें या कंसिक्वेंट सर्च वारंट कहें, वो एडिशनल डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर साइन कर सकते हैं. नॉर्मल कमिश्नर्स, नॉर्मल ACITs, नॉर्मल ITOs, they cannot sign. They are not the person those who can use this power. Only the investigation wing. Wherever there is an investigation wing, in Faridabad there is an investigation wing, in the Gurgaon there is an investigation wing. Only the authorized people, and your director general and your director income tax sits in Panchkula. So these are the only relevant person. So I will not take much of the time here. दूसरी बात मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये वन साइड कम्युनिकेशन नहीं चलेगा. आप मुझको कहीं भी रोक सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये मेरी प्रेजेंटेशन, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, ये ड्रामे का भी कॉपीराइट नहीं है. चेयरमैन साहब आप अपनी ब्रांच में करवाएं और लोगों को प्रोत्साहित करें, सबको दिखाएं. मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं कहीं नहीं कहने वाला, ये मेरा प्ले चला रहे. पूरी स्क्रिप्ट भी मैंने पहले ही दे दी है, आप लोग डालें. कहीं भी कोई मुझे डायरेक्टर, they cannot sign a search warrant, and this issue has taken a lot of litigation. Lot of High Court, Delhi High Court, Allahabad High Court, they have all scrapped all search warrant. So government have changed the law with a retrospective effect, and they say no, these are the search warrant which are valid. So the retrospective change. Then who can come to your premises? डायरेक्टर जनरल साहब खुद तो आएंगे नहीं, तो उन्होंने अपने जूनियर्स रखे हैं जो हम आपको बताएंगे कौन कौन लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं. एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सब लोग ऑथराइज हो सकते हैं नीचे तक. इंस्पेक्टर ऑथराइज नहीं हो सकता, ये मैं आपको क्लियर कर बता दूं. लेकिन इंस्पेक्टर अकंपनी कर सकता है किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को, ACIT को, डायरेक्टर को, उसके साथ उसकी टीम में आ सकता है. इंडिपेंडेंट अपनी कैपेसिटी में इंस्पेक्टर नहीं आ सकता. एंड वी विल ट्राई टू टेल यू दैट हाउ वी नीड टू वेरीफाई ऑल दोज क्रेडेंशियल्स. कैसे एग्जीक्यूशन होगी? फॉर्म 45, 45A, 45B, 45C है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के लिए, लेकिन 45 नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है. 45A और 45B और 45C रेयरली इस्तेमाल किए जाते हैं. जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैं इसको बाद में बताने की चेष्टा करूंगा, कोशिश करूंगा. When suppose now somebody is coming from Gujarat or say Bombay, and he is bringing a search warrant in respect of a person who is there in Faridabad. Now when he comes to the Faridabad, what he find that he has been transferred to Delhi, or there are 2-3 people
more which are required to be searched. So for him it is not possible to go back to Gujarat or to go back to Bombay. So what they will do, they will contact here the local commissioner, they will present their case here, and the local commissioner will issue a search warrant in respect of that SSE for whom there is no satisfaction note which is to be recorded by the local commissioner. The local commissioner will record a satisfaction note that a satisfaction note has already been made by the Gujarat or Bombay Director General, and I am being informed that this is the situation and they want, and if the warrant is not issued in such circumstances, lot of revenue will lose. So I am issuing this search warrant. So these are the forms which are to be utilized in respect of those cases and in respect of other requisition from the government etc. For example, CBI ने सर्च मारी, किसी के पास पैसे मिल गए, फॉरेन करेंसी मिल गई, इंडियन करेंसी मिल गई, उन्होंने इनकम टैक्स वालों को बुलवा लिया. इनकम टैक्स वालों को बुलाने के बाद वो अब पैसा जो है उन्होंने कहा भैया अपना पैसे ले जाओ, कैश से हमें कोई लेना देना नहीं, ये क्राइम मनी नहीं है, ये किसी बिजनेसमैन का पैसा है. तो इन दैट केस they have to make a seizure on the police department or the CBI department, and that search warrant itself will be of different form. It will not be a form of 45. So all these forms are to be utilized. मैं आपको बाद में बताऊंगा इन सब चीज़ों के लिए. कुछ चीज़ें मैं skip कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा delay है, and I do not want to miss the ground rule for search. Yes. कंपिटेंट अथॉरिटी कहां से इंफॉर्मेशन ले सकती है, इंटरनल भी ले सकते हैं, एक्सटर्नल भी ले सकते हैं, एंड इंटरनल सो मोटो भी वो अपने चीजें डेवलप कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपको आज की डेट में बताऊं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चल रही है वो ये चल रही है कि अगर शेयर कैपिटल प्रीमियम पे इशू करी हुई है और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है और जो लोगों ने शेयर सब्सक्राइब करे हैं वो डब्बा कंपनीज के हैं, सर्टिफाइड लिस्ट में से हैं, तो सर्च वारंट आज की डेट में मिलना सबसे इजी. लेकिन ऐसे केसेस के अंदर मैं आपको बता दूं, ऐसी ऐसी जगह सर्च हो रही है जो आप प्रज्यूम भी नहीं कर पाएंगे. वन ऑफ आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाई आई एम टेलिंग यू, ही वाज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी व्हेन ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस 25 years ago. He has never bothered to see that once he has flourished, he should resign. He has given a resignation, but the company failed to file it. ROC record was showing that he is a director. When the income tax department, those who are having the access of all ROC record, all industry record is access is with the Director General in its office itself. The bankers, they have provided their code, where CBS bank system is there, they have provided their code to access their bank statements. Now in that circumstances, the search is being carried out very easily. And it is internal generated information. There may be another example which I give you. For example, a builder is being searched. And a builder, when he is being searched, at that time there are certain things which have been found in the computers of that builder. So, on the basis of that computer information, they can search the people, those who are named therein. Bogus expenses. They receive the information from various sources that these parties are bogus, they are not doing any business, but they are issuing only bills. And they inquire about it, they go to their premises, they carried out simple procedure of verifying the information, and they gather from that that there is only dabba companies, they are not having any business and they are issuing only bills. In such circumstances, they are also doing the searches. Lot of builders have been searched in respect of this. So there are ground rules for custom and excise and the FEMA, but these are applicable in the case of the searches. Objective search, ये छोड़ देता हूँ. Right of a person I will discuss later on. Examination is very important. We will tell you how to examine. How the reporting to the senior authority is required to be given, that I will also tell. They are required to contact their control room. There are certain safeguards which they have to take care. Arrest, there is no power of arrest in income tax. However, there are powers to arrest in custom and excise and in service tax also, but there is no power of arrest in the income tax. In the case of L.R. Gupta, this matter was also used. They have not allowed him to go to the court, and they have given him in the writing that will not allow you till search is over. It is being said, yes, it is a
deemed as arrest by you. So that is also prosecution. Yes, I am telling you, lot of these days there are a lot of prosecution which are being filed by the department, even by the investigation wing, before even the assessments are completed. In my 27-year careers, I have never found that the investigation wing start prosecution. But now these days, I am handling few cases where the investigation wing itself is starting the prosecution only on the ground कि आपने statement गलत दी. For example, मेरे यहाँ आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आपके कितने लॉकर हैं? मैंने बोला सर 2 है, बाद में तीसरा निकला है. उन्होंने पूछा लॉकर में क्या है? मैंने बोला सर कुछ नहीं है, खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं. अच्छा, बाद में अंदर गोल्ड बिस्कुट निकला है. For this also, even though I may surrender this income, they are issuing such this prosecution in this regard. Publicity बहुत सबको अच्छी लगती है. फला जगह सर्च हुई जीटी वाले, देखिए देखिए यहाँ पे ये पकड़ा गया. No, only the director general is the authorized person who can brief the press. अगर कोई ऐसा केस है जिस केस के अंदर प्रेस को ब्रीफिंग दी जा रही है कहीं से डिपार्टमेंट में, इट इज अ वायलेशन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन सेज नो, यू कैन नॉट गिव ए प्रेस ब्रीफिंग एट ऑल. सो दीज आर द रूल्स व्हिच आर. यस सर, द search can be challenged only before the High Court. It is not challenged with the you can say initially with the any assessing officer or something. They cannot do. Once a search warrant is executed, signed, sealed by you, then nothing can be stopped. Then only the High Court is the relevant authority. The party will come, they will seize all records, whatever they want, they will do. So what I told you, you have a ground rule where you can put your own seal. You should ask them to put everything in one box and seal it with your seal also. Why? Because once they have an access, as the brother said, that illegal material is also there, in that case they will not be able to open it till such time your search is quashed or your search is dealt by the High Court. In that case they are not in a position to tell. Otherwise what will happen, they will go back to their office, and after the office, when they go back to their office, they will take out from your search or to your search material something and they will record in their satisfaction note. Sir, ये वजह थी लालाराम गुप्ता के केस में उनको मौका नहीं मिल पाया इस बात का, क्योंकि कोर्ट ने तीसरे दिन ही ये कह दिया कि जो सेटिस्फैक्शन नोट है उसको सील कर दो, एंड इट वाज सील्ड. Clap for them. DIT office. Complainant is walking for bringing an information. मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है. आप इसमें अपना नाम और पर्पस लिख दीजिए. जी मैं अपना नाम और पर्पस इस स्लिप पे नहीं लिख सकता, मैं वो आपके साहब को ही बता दूंगा. आप रुकिए, मैं अभी साहब से पूछ कर आता हूँ. जी ओके. साहब आपसे कोई मिलने आया है. कौन है, क्यों मिलना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि वो आपको ही बताएंगे. ठीक है, भेज दो उनको. साहब आपको अंदर बुला रहे हैं. पता नहीं, लोगों को कोई काम नहीं है, सुबह सुबह आ जाते हैं, वैसे उनको बुलाओ तो लोग आते नहीं है. चलिए, ये जनाब बगैर बुलाए आ गए. आइए. मैं कम इन सर. यस प्लीज, बैठिए. सर मेरी आपसे एक कंप्लेंट के रिगार्डिंग बात हुई थी, उसी के बारे में बात करना है. क्या आपके कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है आपकी? जी सर, इस एनवलप में सारी डिटेल्स हैं. कंप्लेनेंट घबरा रहे, नाम नहीं बता रहा, देख लेगा कोई. ठीक है, मैं देख रहा हूँ. एक चीज़ आपको बता दें कि ये कंप्लेंट आप कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही सर्च करता है या कोई फर्दर एक्शन लेता है. अगर आपकी ये इन्फॉर्मेशन ठीक है तो हम इस पर एक्शन लेंगे, और अगर इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो इसकी आपको पीनल कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. ये आपको बिल्कुल बड़ा क्लियरली आपको बता दें. और अगर इन्फॉर्मेशन ठीक है और उसमें आपको कुछ, हमें डिपार्टमेंट को इस पर कुछ टैक्स रिकवरी होती है, तो देन यू विल कैन ऑल्सो बी रिवॉर्डेड. ठीक है, आप वैसे काम कीजिए, आप अपना कंप्लीट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा वो दे दीजिए, जिससे कि आप इस पर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें आपसे लेनी है या आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो देन वी कैन डू इट. मेरी इन्फॉर्मेशन सर 100% करेक्ट है, आप चेक करवा सकते हैं, और मेरी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो इसी एनवलप में है. ओके, ठीक है, आप जा सकते हैं. ओके सर, थैंक यू सर. विल बी इन टच विद यू. ओके ओके. The complaint is received. See what action now they are going to take.
Hello. Yes, sir. Could you come to me? Yes. Yeah. आओ बैठो बैठो। क्या हाल है? बस क्या चल रहा है आजकल? क्या कुछ नो एक्शन फ्रॉम योर साइड फ्रॉम क्वाइट सम टाइम? भाई कैसे चलेगा? आई नहीं रहा अभी तक। नहीं कुछ तो देखिए, कुछ कंप्लेंट्स हमारी ऑटोमेटिकली आती हैं, कुछ हम लोगों को डिपार्टमेंट को भी तो अपने आप रेकी करके कुछ पता है। एक कंप्लेंट आई है, दिस इज द कंप्लेंट, गो थ्रू दिस कंप्लेंट, ओके सर। carry out Ricky, carry out the background work, and let me know the progress on a daily basis. ओके। Okay. Thank you. अपूर्वा, please come to my cabin. Yes, sir. मैं come in, sir? Come. Yes, sir. बताइए। अपूर्वा, डीआईटी सर ने मुझे कंप्लेन दी है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन इस एनवेलप में है। Yes, sir. आप इसकी इंक्वायरी करें, और बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत सेंसिटिव केस है, बहुत ध्यान से इंक्वायरी करें। ये सर मैं बता देती हूँ आपको, सारी इंक्वायरी कर लेंगे, फिर मैं आपको रिपोर्ट देती हूँ अपनी कुछ दिन में। ठीक है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें वो रिलायबल होना चाहिए। जरूर सर, भरोसा रखिए, सब रिलायबल है। थैंक यू सर। रेकी हो गई, इंक्वायरी कर ली, गाड़ी आ गई। रेलेवेंट एविडेंस कलेक्ट किए गए बाय कैमरा। मैं come in, sir? Yes, come in. Please. सर कुछ दिन पहले आपने मुझे कंप्लेंट दी थी सर्च के लिए, तो सर मैंने अपनी इंक्वायरी कर ली है। ये रहे कुछ फोटोग्राफ्स और ये रही बाकी सारी डिटेल्स। इसमें कुछ अनडिस्क्लोज इनकम की पता चली है कि कुछ लाइफस्टाइल जो है एसएससी का, वो डिस्क्लोज इनकम से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, और हमें लगता है कि ये फिट केस है सर्च के लिए। ओके, एसएससी वेल्थ टैक्स की रिटर्न फाइल करता है? नहीं सर, वेल्थ टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, ये बात मैंने अपनी फाइंडिंग्स में लिखी है। ओके, और हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर देयर? सर देयर आर 3 डायरेक्टर्स। व्हाट बिजनेस आर दे कैरिंग? सर ट्रेडिंग ऑफ बुक्स। डिड यू नोटिस एनी प्रीमिसेस, और कोई प्रीमिसेस है इनका, या कोई गोडाउन है? सर बस एक ही बिजनेस प्रीमिसेस है, कोई गोडाउन नहीं है, और उसकी एंट्री एग्जिट डेट की डिटेल मैंने इस फाइंडिंग्स में लिख दी है। और कोई सस्पिशियस बात है इस क्लाइंट के बारे में जो आपने नोट करा? सर एक बात पता चली थी जितनी इंक्वायरी की उसमें, कि एसएससी के कुछ भरोसेमंद 1-2 आदमी डेली कुछ बैग्स लेके जाते हैं बैंक में, और हमें शक है कि वो कैश हो जाए उसके। First stage of the inquiry completed. सर कुछ दिनों पहले आपने मुझे एक कंप्लेंट दी थी, और मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है। टैक्स की चोरी तो मुझे लग रही है, इसलिए सर्च करनी चाहिए। What is the inquiry conducted? ये इंक्वायरी किसने कंडक्ट किया? सर डीआई अपूर्वा ने सारी इंक्वायरी कंडक्ट की है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, और आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन
और उनकी काबिलियत पर आपको शक नहीं करना चाहिए। But then what is the information? देखिए सर्च है, it is not a simple scrutiny matter. सर्च है तो we have to be absolutely sure कि जो जब हम सर्च करने जा रहे हैं we are invading somebody's privacy. So we should be absolutely sure that we are approaching the correct person. और हमारी जो भी सपोर्ट है, जो भी एक्शन है, अगर ये एक्शन कुछ गलत होता है then you know there could be a lot of impact. So इसलिए we have to be absolutely sure. Besides Apurva, what is the inquiry that you have conducted independently? मैंने खुद भी इसको केस को क्रॉस वेरीफाई किया और मैंने देखा है कि सारी DDIT अपूर्वा की इंक्वायरी जो कही है वो करेक्ट है। आपने क्या इनकी पुरानी इनकी टैक्स रिटर्न्स वगैरह वेरीफाई की? सब कुछ दिखा है, सब कुछ दिखा है। फैमिली मेंबर्स वगैरह के बारे में, इनकी और आदत बहुत इन डेप्थ चेकिंग की है। You satisfied that? Yes, yes. Let me go through these papers. Okay. Just hold on. Let me go through these papers and then let's see. So then, yes, it looks to be a case where the department should take action. Yes. Definitely, if suggesting some undisclosed income or some action needs to be taken. Karan, I have for the preliminary, I am satisfied कि yes it should done. एक आप काम करिए, एक satisfaction note उसको बना लीजिए. Okay. And we'll decide as to when to take a final action. Okay. Or, but do it fast. Okay. ये अगर जो भी हमें action लेना है, it should be done in next 2 days time. We don't have much of time. Yes. Please, but do it quickly. Thank you. Okay. The so-called tax satisfaction note is now under preparation. The team will work. They will prepare various premises. The DIT has already directed them, and Apurva, Deputy Director, has already checked every point that from where the entry has to be made, what are the exit points, because once they enter and suppose there is exit point, people can walk out. So, Apurva ने इस चीज का पूरा नक्शा बना लिया है और अब वो आगे कार्रवाई के लिए तैयार है। Apurva, please come to my cabin. Yes, sir. May I come in, sir? Yes, sir. अपूर्वा, कुछ समय पहले तुमने कंप्लेन की फाइंडिंग्स दी थी। अब हमें सर्च की तैयारी करनी है और 23rd May 2015। Okay, sir. So get ready with all the logistics and be prepared for action. ठीक है सर, मैं तैयारी कर लेती हूँ। Thank you, sir. DGIT कुछ नहीं करते, अखबार ही पढ़ते रहते हैं और एडिशनल भी अपने जूनियर को बुला के बोलता है ये करो वो करो, यहाँ जाओ ऐसे करो। रिवार्ड लेने के लिए दोनों आ जाएंगे। Yes. May I come in, sir? Yes, yes. Please sit down. सर, जैसे कि आपने कहा था लॉजिस्टिक्स तैयार करने के लिए, सर ये मैंने सारी लॉजिस्टिक्स तैयार कर ली है। Okay. हमारी सर्च टीम हम तैयार कर लेंगे, आप जैसे डायरेक्शन देंगे। Very good, Apurva. Good job. मैं लीव सर? Yes, yes, you can Thank you, leave. sir. Yes, Karan है, बैठिए। सर, सर्च के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं। आपकी हम्म। अप्रूवल की जरूरत है। Hold on. Before I give my approval, how many teams are you planning to? What all places you planning? One. I will suggest एक नहीं, आप 2 टीम बनाइएगा। ठीक है।
एक ऑल्टरनेटिव टीम होगी, वन वुड बी मेन टीम, वन वुड बी एन ऑल्टरनेटिव टीम, बट किसी टीम मेंबर को ये नहीं बताया जाएगा कि विच इज द मेन टीम। दोनों टीम रेडी रहेंगे, उनको बुलाइए सर्च के दिन, बट किसको भेजना है दिस आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, मैं सेटिस्फैक्शन नोट साइन कर रहा हूँ, बट देन टेल मी इंटीमेट टू मी कौन कौन से ऑफिसर्स आप इसमें रख रहे हैं। ठीक है, As a matter of rule, one direct recruitee is to be included in every team, at least. Promotees are avoided in the teams together. Only one direct recruitee has to be there in every team. Apurva, please come to me. Yes, sir. May I come in, sir? Yes, sir. Apurva, here are all the authorizations and instructions. Okay, Prepare sir. 2 teams and proceed for action. All the best. Okay, thank you, sir. Hello, Mr. Siddharth? यस अपूर्वा जी, क्या हाल है? कैसे हैं सिद्धार्थ जी? आई एम गुड, आप कैसे हैं मैडम? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। एक्चुअली सर आपको कल एक एक्शन के लिए जाना है, ओके, तो आप अपनी 4 लोगों की एक टीम बना लीजिए। ठीक है मैम, तो आप कल सुबह आके 6 बजे मेरे ऑफिस में रिपोर्ट कीजिएगा अपनी Sure. टीम के साथ। श्योर मैम। ओके, थैंक यू। पुनीत जी, पुनीत जी कैसे हैं आप? एक्चुअली कल सुबह आपको एक एक्शन के लिए जाना है, आप अपनी टीम तैयार कर लीजिए 4 लोगों की, ओके और आप कल सुबह 6 बजे मेरे ऑफिस में आके रिपोर्ट कीजिएगा। ओके। थैंक यू पुनीत। मॉर्निंग अपूर्वा जी, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बैठिए प्लीज। बस मैडम बताइए कैसे याद किया? बस आपको कल सर्च के लिए, आपको जैसे पता ही था कि कल आपको इनकम टैक्स सर्च के लिए जाना है आज, जी, तो ये रहे आपकी ये डिटेल्स। ओके, आप दोनों टीम, आपकी टीम सिद्धार्थ जी रेजिडेंस जाएगी, ठीक है मैम, ठीक है, और पुनीत जी ये आपके डिटेल्स रहे। पुनीत ठीक है। जी आपकी डिटेल बिजनेस प्रीमाइसेस पे जाएगी, राइट मैम, ठीक है। तो आप नीलम चौक पे पहुंचिए आप लोग, ठीक है, फिर आप मुझे वहां से कॉल कीजिएगा, तब मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। उससे पहले आप एनवेलप नहीं खोलेंगे, Sure, आपको ma'am. पता ही होगा बाकी Sure, सारी ma'am. फॉर्मेलिटीज। सारे डूज एंड डोंट्स पता है। ओके सिद्धार्थ, ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, Thank you. बाय। सील्ड एनवेलप दिया जाएगा, ये बताया नहीं जाएगा कहाँ जाना है। नीलम चौक पे आपको पहुंचना है, वहां पहुंचने से पहले एनवेलप नहीं खोल रहे। हेलो अपूर्वा मैडम, हाँ जी सिद्धार्थ जी बताइए, पहुंच गए मैडम हम आप? लोग पहुंच गए हैं नीलम घाटा चौक, अच्छा, फरीदाबाद, हाँ जी। और आगे की डायरेक्शंस दीजिए अब कैसे करना है। तो आप अपना एनवेलप खोलिए, जैसे कि आपको डिटेल्स अब मैंने एनवेलप्स में डाल के दी हैं, आप जी, दोनों मैडम। टीम खोलिए और प्लीज प्रोसीड कीजिए अपने एक्शन के लिए, ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा, कोशिश करें जितनी अनडिस्क्लोज इनकम है आप सब निकलवा सकें ऐसी से। ठीक है मैडम। ओके सिद्धार्थ जी, Okay. थैंक यू। चलो भाई पुनीत, तुम अपनी जगह पहुंचो, मैं अपनी जगह पहुंचता हूँ। इन्हें हर बार दिन में हम ही दोनों लोग मिलते हैं, बाकी तो कोई मिलता ही नहीं। चलिए, सेटअप 1 is over. Now action team will come. साहब, क्या संस्कृति को उठा दे, आज उसका पेपर है ना। जी साहब, उठा दे और मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना ला। जाता हूँ।
छोटी मलकिन उठिए, परीक्षा देने नहीं जाना क्या? सुबह परेशान कर रहे हो। परेशान तो आपने ही कर रखा है हमें। कुणाल देख कौन है बेटा? जी साहब देखता हूँ। सुबह सुबह अरे अरे कहाँ घुसे आ रहे हैं? किससे मिलना है आपको? कुणाल कौन है ये? क्या हो रहा है ये? गुप्ता जी हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। इनकम टैक्स? घबराइए मत, आपके इनकम टैक्स की रेड है और ये सारे हम लोगों के ऑफिशियल आई कार्ड हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। घबराइए मत बिल्कुल, ये एक ऑफिशियल इंक्वायरी है, ऑफिशियल प्रोसीडिंग है, हम सभी सरकारी ऑफिसर्स हैं जी। ठीक है, ये सर्च वारंट है। अनिल जी आप इनको सर्च वारंट दिखाइए। सर इसकी क्या सर्च जरूरत वारंट है? देखिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। ये रिक्वायरमेंट। गुप्ता जी इस पर साइन कर दीजिए। विटनेस प्लीज। गुप्ता जी इन पर साइन कर दीजिए। कर दिए। अनिल जी साइन हो गई। आप बैठे क्यों हैं? आप खड़े क्यों? बैठिए ना, रिंग में नए आए हो क्या? इससे पहले कितनी रेट में जा चुके? विटनेस प्लीज। कोई बात नहीं, चलिए। विटनेस प्लीज। गुप्ता जी आप एक काम कीजिए, अपने किसी पड़ोसी को बुलाइए, 2 पड़ोसियों को। हमें इनकम टैक्स रेट शुरू करनी है, उसके आने से पहले हम लोग सर्च प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। अभी इनकी थोड़ी देर रुक जाइए, इतनी जल्दी कोई उठे नहीं होंगे लोग। गुप्ता जी सुबह के 8 बज चुके हैं, अब तक सब उठ चुके होंगे और हमें अपने काम को शुरू करना है। हम लोग नहीं रुक सकते, अदरवाइज हमें अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। तो आप किसी को भेजकर अपने 2 पड़ोसियों को बुलाइए ताकि प्रोसीडिंग शुरू करें। जी साहब, पड़ोस से 229 वाले शर्मा जी को और 331 वाले गुप्ता जी को बुला रही हो। शर्मा जी कौन, वो मोटे वाले या पतले वाले? अरे कोई से भी हो, बुला रही हो। अभी इस समय तो वो मॉर्निंग वॉक पे गए होंगे। अरे पार्क में जाके बुला रही हो, बुला ला उनको। जी साहब जाता हूँ। कह दियो, कोई दिक्कत करे तो कह दियो, मेरे से बात करा दियो। जी साहब करा दूंगा। आईटीओ केशव हमारे इनके साथ जाएंगे। आईटीओ आप इनके साथ जाइए और देखिए विटनेसेस को लेकर आइए फटाफट। ओके सर, ठीक है। अरे अरे सुनिए सुनिए गुप्ता जी, शर्मा जी साहिब ने आपको बुलाया है। अरे इतनी सुबह सुबह क्या हो गया भाई? हमको तो नहीं पता, आप साहब से ही पूछ लो। सर छोटे छोटे लोगों पर भी इनकम टैक्स की लगाने लगी, हम क्या छोटे छोटे लोगों पर भी। गुप्ता जी इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, जिस पर वो छोटा सा रह जाता है वो तो अपने आप बड़ा हो जाता है। बच्चों की शादी में आपको बड़ी मदद मिलेगी। तो आप भी आ गए। नमस्ते भाई। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है भाई, हमारे यहाँ इनकम टैक्स वाले आए हुए हैं, इनकम टैक्स की रेड हो गई है। अब विटनेस के लिए बुलाया है आपको। देखो हम तो ऐसे विस्टर्न करेंगे कि सरकारी आदमी है, कल को हमें बता दो उल्टे। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर विटनेस दीजिए। और हम लोग सरकारी अफसर है, हमें पता है कि आम आदमी की सहायता कैसे करनी है। वैसे ही आजकल आम आदमियों का राज है। आप बिल्कुल निश्चिंत होइए और स्टेटमेंट दीजिए और विटनेस कीजिए। अनिल जी हम आपके कहने पे विटनेस दे रहे हैं, कल को हमें ना बताया जाए। नहीं नहीं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो नुकसान होगा मेरा ही होगा भैया। विटनेस के आई कार्ड लिए गए, आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया गया। ठीक है बोल, ठीक है सर। अब ये गए 2 दिन के लिए। दो दिन फंस अरे गए। गुप्ता जी ये क्या कर रहे हैं आप? फोन कॉल नहीं कर सकते। मैं अपने टैक्स कंसल्टेंट को बुलाना चाह रहा हूं। नहीं नहीं, आप किसी को नहीं बुला सकते। आप सभी फोन्स को आईटीओ पुलकित, सभी लोगों के फोन्स को आप हैंडओवर कर लीजिए, सभी के फोन्स अपने कंट्रोल में कर लीजिए। मैं अपना फोन क्यों दूं? मेरे फोन में ऐसा क्या मिलेगा? बेटा अपना फोन दे दो, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। पापा just let me change my WhatsApp status then. बच्चों की समस्या कुछ और है। जी आजकल के बच्चे अंडे से चूजे निकलते हैं और व्हाट्सएप शुरू हो रहे हैं। अंग्रेजी बोलना जरूर आता है। अच्छा सर इनके फोन पे किसी का कॉल आ रहा है। दिखाओ किसका फोन है? सर अननोन नंबर से है। हेलो जी, ये अपना फोन लीजिए और लाउड स्पीकर पर बात कीजिए। लाउड स्पीकर पे करिए। हेलो, हाँ भैया मैं मुकेश बोल रहा हूँ। क्या बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, सब ठीक है ना? नहीं नहीं भैया, इनकम टैक्स की रेड हो गई है। इनकम टैक्स की? हाँ। आप भागने की कोशिश मत कीजिएगा। गुप्ता जी आप इनको बुलाइए, घर के अंदर बुलाइए। कौन है आपके भैया ये? गुप्ता जी का तो वॉल्यूम ही खत्म हो गया। अगर आप नहीं बुलाएंगे तो मेरे साथ पुलिस के गार्ड से, फिर मैं पुलिस के आदमी को भी भेजूंगा, अपने आदमियों के साथ। इनको आप बोलिए कि मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। भैया आप अंदर आ जाओ। आना पड़ेगा। आ जाओ। आता हूँ। आईटीओ पुलकित जरा देखिए, उनको लेकर आइए अंदर, भीतर लेकर आइए उनको।
लो जी, इनका भाई आ गया कि सवेरे सूट बूट होके जा रहा था कहीं, रात को पार्टी से आ रहा था। देख अभी सवेरे आया। सारी पार्टियों का नशा उतरेगा। अभी तो इनकम टैक्स वाले आए हैं, बारात तो बाद में निकलेगी। बैठिए 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 भाई के पास बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल, भाईचारा निभाओ, विभाग की कार्रवाई तो होती रहेगी। इतना टैक्स चुरा रखा है इतने सालों से। पापा पापा मुझे कॉलेज जाना है, मुझे लेट हो रहा है। कोई नहीं जा सकता अभी घर से बाहर, बिल्कुल कोई नहीं जा सकता। सर आज मेरा इंटरनल है, मेरा जाना जरूरी है। गुप्ता जी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इनके बैग की तलाशी लीजिए। ज्योति आप इनके बैग की तलाशी लीजिए और ये ऐसे नहीं जाएंगी, इनके साथ हमारी एक इंस्पेक्टर जी जाएंगी। सिर्फ एक नोटबुक और एक पेन ही है। अरे गुप्ता जी आपके कहने से पहले ही अपने घर की डिसेंसी को मेंटेन रखते हुए लेडी इंस्पेक्टर ही तलाशी ले रही है। आप देख लीजिए, बिल्कुल सामने आपके तलाशी हो रही है और बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर सब ठीक है। सब ठीक है तो आप ज्योति इनके साथ जाइए। आप घुसर मत कीजिए गुप्ता जी। अपने बात भी नहीं कर सकते हैं क्या सर? बात कीजिए, आपका अपना ही घर है, सब अपने लोग हैं। बिल्कुल, मुझे कुछ सवालों के आपसे जवाब पूछने हैं। आपके इस घर में कितने लोग रहते हैं आपके अलावा? सर मेरे अलावा 4 लोग और रहते हैं। मेरी वाइफ, मेरी बेटी संस्कृति, मेरा भैया मुकेश है और एक हमारा सर्वेंट कुणाल। अच्छा, नौकर भी रखा हुआ है। बाकी सब लोग तो दिख रहे हैं, आपकी बीवी नहीं दिख रही। श्रीमती जी को कहाँ भेज दिया? मॉर्निंग वॉक पर? नहीं, मेरी वाइफ यूरोप गई हुई है सर, विदेश में। कहाँ? यूरोप गई हुई है सर। यूरोप गई हुई है? जी सर। बिजनेस टूर पे? जी। टूर तो नहीं है गुप्ता जी? नहीं सर, बिजनेस टूर है। मानना पड़ेगा, आपका सर, दिमाग मजबूत है। अकेले ही भेज दिया भाभी जी कोई और? सर इंटरनेशनल बुक फेयर लगा हुआ है सर वहाँ पर, मुझे भी जाना था पर तबीयत ठीक नहीं चल रही थी इसलिए नहीं गया। कोई बात नहीं, अभी तो तबीयत और खराब हुई है, अभी तो हम आए हैं और खराब हो जाएगी। बतेरे लोगों की होती है हमारे नाम से, चिंता मत करो। वो तो भैया भी जाने वाले थे, समय खराब था कि नहीं गए। कोई बात नहीं, अब तो अच्छा समय आ गया, हम आगे तरक्की दिखेगी। बाजार के भी लोग कहेंगे बहुत तरक्की की है। गुप्ता जी पैसा अच्छा है। गुप्ता जी मुझे आपकी 132(4) की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। सर वो क्या होता है? अनिल जी इनको बताइए 132(4) क्या होता है? 132(4) में ये शपथ देनी होती है कि आप जो भी कुछ कहेंगे सच कहेंगे और इंडियन पेनल कोड के हिसाब से और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर आपने गलत कहा तो उसके फाइनल कॉन्सिक्वेंस होंगे। कुणाल जी साहब, तो मलाई की कोई जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही सरकारी मुलाजिम है, शुगर के मरीज है। आप जैसे लोग टैक्स चुराते रहते हो, टेंशन देते रहते हो। कोई मिलाई मारने की जरूरत नहीं, बिल्कुल साधारण चाय बना देना फीकी, और अगर शुगर फ्री मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और सुबह 4 बजे के घर से निकलो यार, एक आध बिस्किट नमकीन वगैरह मिल जाए तो हमारे बाकी सभी साथी भी थोड़ा तो बाकी सबका भी पूछ लो। कल के समोसे रखे थे वो भी लिया। जी साहब, भेजता हूँ खाने पीने के लिए। शुगर फ्री के साथ साथ जहर की गोली मिला देता हूँ, सबका काम खत्म हो जाएगा एक साथ। साहब का भी, मेहमान का भी, मेरा भी पीछा छूटेगा। काम पूरा होने के बाद जब ये विंग में आएंगे ना तो इनको सब बढ़िया ताजा ही सामान खिलाया जाएगा। बिल्कुल जैसा इन्होंने किया है। ये सारे के सारे इनके व्यवहार याद रखिएगा आप। चलिए गुप्ता जी, आपकी स्टेटमेंट लेनी है, लाइए किट बैग निकालिए, प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट होगी उसके अंदर। बाकी लोग अपनी कार्रवाई करी जा रहे हैं। क्यों लेनी है ऐसी? अरे सब लेना देना तो बाद में चलेगा, पहले हमें अपनी विभागीय कार्रवाई करने दो। और ज्यादा शोर मत करना, वरना वीडियोग्राफर को बुला लूंगा, वीडियोग्राफी में भी करवा दूंगा तुम्हारी सर्च। बहुत शोर करते हो, बहुत पॉलिटिकल नहीं जी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था सर। तो बिल्कुल शांत रहो। चलो कर रहा है अभी। गुप्ता जी, आपको 132(4) की स्टेटमेंट पता है ना? आप शपथ लेंगे उसके अंदर। क्या शपथ लूंगा सर? अनिल बताओ इनको, क्या शपथ लेंगे? शपथ ये लेंगे जो कुछ कहोगे आप सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, ये शपथ आप लेंगे। और अनिल इनको वो तो बताओ, अगर इन्होंने कुछ गलत बोला तो क्या होगा? जेल भी जाएंगे। और मोटे वाला डंडा तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, तुड़ाई का भी इंतजाम है। गुप्ता जी कोई बात नहीं, आप तो इज्जतदार नागरिक हैं, आराम से डंडे वंडे की बात नहीं, प्यार से स्टेटमेंट मान जाओगे आप। चलिए गुप्ता जी, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। माय सेल्फ विजय गुप्ता, गुप्ता, रेजिडेंट ऑफ B1/123। अपना पता इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? सेक्टर 12 फरीदाबाद। सर तबीयत खराब हो रही है सर। कोई बात नहीं, घबराहट हो रही है। तो तबीयत खराब ही होती है, ठीक ही करेंगे हम, कोई बात नहीं, चिंता मत करो।
आप अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताइए और कौन कौन सी कंसर्न्स में आप डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, पार्टनर है, उन सब की डिटेल्स हमको दी। तो क्या भी देख रहा है खोल के? सर मैं ABC प्राइवेट लिमिटेड में चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। गद्दे भी फाड़ लेना। मेरी वाइफ भी इस कंपनी में डायरेक्टर है, मुकेश भाई भी इसमें डायरेक्टर हैं। अच्छा। हमारा किताबों का बिजनेस है, मेन मार्केट फरीदाबाद में। किताबें बच्चों वाली या वो वाली? बच्चों वाली किताबें और इसके अलावा हमारा किसी और कंसर्न में कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है। आप अपनी आयकर की विवरणी दाखिल करते हैं और धनकर की भी विवरणी दाखिल करते हैं, नहीं करते? हाँ सर, मैं अपनी आयकर की विवरणी नियमित रूप से दाखिल करता हूँ, टाइम से दाखिल करता हूँ। हेल्थ वाली तक तो सर मेरे को बनता ही नहीं है। हमको बनता ही नहीं। ये तो सर चाय डाल के सर आप पहले चाय ले लें सर। चाय लेते रहेंगे। चाय लो सर, ये तो होता रहेगा। अरे कोई बात नहीं, चाय भी लेंगे, शाम को भी ड्रिंक लेंगे, घबराओ मत। अभी काम करने दो, बहुत देर तक जल्दी काम होगा उतना आपको आराम होगा। चलिए गुप्ता जी, आप अपने परिवार की चल संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। बताइए कब कब कौन कौन से साल में आपने वो प्रॉपर्टियां खरीदी और कैसे कैसे वो प्रॉपर्टियां खरीदी? सर एक तो यही प्रॉपर्टी है, ये मेरे ससुर ने 2006 में खरीदी थी। मेरी वाइफ उसके बाद, उनके जाने के बाद ये मेरी वाइफ को ट्रांसफर हो गई। भगवान आप जैसा ससुर सबको दे गुप्ता जी, कमाल की बीवी ढूंढ के निकालिए। भाग्यशाली हैं। चलिए सर एक प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम गुड़गांव में है, जो हमने 2009 में खरीदी थी। भाई अरे तो पक्के में आप इंटरफेयर मत करो, नहीं उठा के बाहर फेंक दूंगा। इधर साथ बैठने दे रहा हूँ, बहुत है। बताइए गुप्ता जी। मेरी वाइफ के नाम एक बल्लभगढ़ में प्लॉट है, जो हमने एक प्लॉट ऑलरेडी मथुरा रोड पे था, उसको बेच के दिया था सर। 8-7 साल हो गए उसको। ठीक है, इसके अलावा और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं सर, इसके अलावा कोई। आप अपने बैंक खातों की डिटेल दीजिए, कौन कौन से बैंक में आप लोगों के किस किस तरीके के खाते हैं, और ये भी बताना कोई विदेशों में खाता तो नहीं है। उनके लिखते रहना। सर मेरा एक अकाउंट तो बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? बैठो ना। अरे सीखोगे नहीं तो कैसे चलोगे? स्टेट बैंक, इसको बाहर लेके जाओ। मेरा एक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फरीदाबाद में है, और हमारी फर्म का अकाउंट जो है, कंपनी का अकाउंट HDFC बैंक मेन मार्केट में है। एक बैंक अकाउंट मेरी मिसेस का है, एक भाई का है। अनिल जी आप भी टहल लो, आप भी देखो, नहीं एक दूसरी तीसरे बार का ही इनका एक्सपीरियंस है। हाँ गुप्ता जी बताओ। और एक मेरी बिटिया के नाम से अकाउंट है, मेरी मिसेस उसके अंदर नीचे भी देख ले। अच्छा, और गुप्ता जी इसके अलावा और कुछ नहीं? और कुछ नहीं है सर। आपका कोई विदेशी लॉकर नहीं है, विदेशी खाता नहीं है? सर मेरा कोई विदेशी खाता नहीं है, कोई विदेशी लॉकर नहीं है। हाँ एक लॉकर जरूर है मेरा, स्टेट बैंक लेना देना वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड में। लेना देना? हाँ। अरे वाह, क्या वॉल्ट का नाम है, लेना देना। कभी पाया खोया, कभी लेना देना। गुप्ता जी 324 चीजें आए। 324 नंबर मेरा लॉकर है सर, इस चाबी अंदर ही है। ये भी खा लेना मुझे ध्यान से। स्टेट ऑर्डर की टाइम पर जरूरत पड़ेगी इसकी चाबी। सर मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे क्या हो गया भैया, क्या हो गया? अरे भैया को क्या हो गया? कुछ नहीं है, हर रोज के। अरे आप चुप रहिए, यहाँ भैया की तबीयत खराब हो रही है, आपको अपनी सर्जरी की पड़ी है। देखते हैं हम लोग ये चीजें, रोज ही ड्रामा है। अरे जरा डॉक्टर को बुलाओ भाई जल्दी से। सही में तबीयत खराब हो गई। केशव डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को बुलाओ। फोन उठाओ इनका, इनके डायरेक्टरी के अंदर डॉक्टर को कॉल करो। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो हेलो यस जी, मैं मुकेश जी के घर से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए। उनकी तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। ओके ओके आई एम कमिंग। चलिए मुकेश जी, इतने आपके भाई साहब की तबीयत खराब है, इतने डॉक्टर आते हैं, इतने अब आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। भाई साहब कमाल करते हो आप, यहाँ भैया की तबीयत ऐसी हो रही है, आपको स्टेटमेंट की पड़ी है। कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे भैया, चिंता मत करो। ये कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। तुम्हारी वजह से तबीयत और खराब हो रही है। सोफे की आधी जगह लेके बैठो, खड़े उधर जाके बैठो, बैठने दो इनको। हाँ जगह नहीं खड़े हो, चलो खड़े हो। जगह नहीं है, जगह नहीं आ रहा, हमारा अफसर बैठे बैठे रहने दो। खड़े हो, चलो अपने भाई को हवा पानी करो जरा। नौकर भी सारे खुर्राट बना लिए हैं इन्होंने घर में। कहाँ रह गया डॉक्टर केशव? पता लगे सही में टपक जाए, हमारी नौकरियां निमट जाए। डॉक्टर साहब हाँ बताइए जरा भैया को क्या हो गया? ये तो बहुत सीरियस लग रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अरे तू बहुत बोल रहा है, तेरे को समझाया नहीं था क्या? डॉक्टर साहब अपने हिसाब से देखो जरा, ध्यान से देखना, अगला नंबर आपका है। अनिल इनको लेके जाना। डॉक्टर साहब संभाल के देख लेना, आजकल आपके भी नजर है, आपके भी प्रोफेशन को कोई गड़बड़ वड़बड़ कर तो बता रहा हूँ हमारा बिल्कुल लगा देंगे।
अभी हुआ है, अभी हुआ है। बीपी चेक कर लो इनका। अरे क्या फोन की क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, वैसे ही पूछ। वैसे ही सर्वेलेंस ज्यादा है तो क्यों उल्टे काम कर रहा है? कोई बात। कंट्रोल रूम में चेंज कराओ क्या आदमी है? इधर आके बैठ जा चुपचाप। ये रहते उनके फोन हटवा देते हैं। हाँ आराम से। चलो मैं भी इतने तुम इनका देखो जरा, मैं भी इतने एक आध सारा फैला दे, सारा दोबारा लगाना पड़ेगा। अरे चल तो साइड पे काम करने दे अभी। चलिए ज्यादा गड़बड़ कर रही है, रोको। कोई बात नहीं, इसका इलाज करेंगे बाद में। सोफे वोफे भी इनके है ना गड़बड़ हो सकती है, सारे सोफे उधेड़ दियो। थोड़ा सांस लो, दीवारें फॉल सीलिंग की सब देख। लंबा सांस लो थोड़ा। अरे चलो जहाँ बैठे हैं ये। अरे उसकी भरने की हालत हुई पड़ी है यार, देख लेने दे डॉक्टर। एडमिट करा दे डॉक्टर साहब इन्हें। नहीं अरे तुझे समझाया ना यार, क्यों नहीं मानता? बहुत डन किस्म का आदमी है। गुप्ता जी शादी ब्याह कराया था तुमने अपने छोटे भाई का? बोलने की हालत नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं। ये कपड़ वाले में ठीक हो जाए। पिछली बार की तरह कई बात पे बात करेंगे। नहीं होंगे जी ये। अरे तू फालतू मत बोल, पानी पिला, चाय पिला, इसको ठीक हो जाएगा। अरे पानी लेके आना जरा। कोई नहीं बताइए, ठीक हो जाओगे। ठीक है, और 1 घंटे इनको आराम करने देना जरा। चलो मुकेश जी, तुम्हारे भाई को डॉक्टर ने देख लिया, सब ठीक ठाक है। अब हम तुम्हारी स्टेटमेंट ले लेते हैं। आ जाओ। क्या प्यार है भाइयों का, एक राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, एक तुम दोनों की है। आ जाओ, अब स्टेटमेंट लेते हैं तुम्हारी। आओ, बहुत तुम्हारी भी लेते हैं। आ जाओ, बैठो। प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। जी मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। हाँ। और मैं इनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, आप ये पहचान है? लोग तो पिताजी का नाम बताते हैं, आप इनका छोटा भाई बताते हैं। पिताजी का नाम ये बता चुके हैं जी। मुझे लगा चलिए कोई बात नहीं। आपके घर में कितनी ज्वेलरी और कितना कैश रखा होगा? लिखते रहो। वो तो भाभी को ही पता होगा। भाभी को पता होगा? हाँ जी। अच्छा कोई बात नहीं। आपके नाम में कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं? बताते तो हैं, गुड़गांव में प्लॉट है मेरा। कोई बात नहीं, सब जगह हम भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और आपके नाम में मूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी है? वो बाहर जो बढ़िया वाली लंबी कौन सी है? वो एक छोटी सी BMW। नहीं वो पूछे तो वो दूसरी है। वो मैं कभी कभी लेके जाता हूँ। अच्छा, मैं BMW पे जाता हूँ। वो किसके नाम में है गाड़ी? भैया के नाम पे है जी। चलो होश में आ जाने तो, उसके बाद इनसे भी समझेंगे कहाँ से ली हुई है गाड़ी। उसके बाद इनसे भी बात कर। लेकिन वो चलाते नहीं जी, हम बहुत कम बस से ही जाते हैं, ऑटो से जाते हैं। हाँ सभी ऐसे ही करते हैं। शादी ब्याह में कहीं जाना होता है तो ले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, शादी की उम्र है ना तुम्हारी? हाँ मैडम बताओ। अलमारी लॉक्ड है, चाबी नहीं मिल रही? चाबी दो इस अलमारी की। तो भाई को पता होगी जी, वो सो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, चाबी नहीं मिली, तो हमारे पास पावर से हम अलमारी का ताला भी तोड़ सकते हैं। तोड़वा दें सर? हाँ बिल्कुल तोड़ाओ, हमारे पास 132। नहीं मैं देखता हूँ, शायद मिल जाएगी। देखा, डंडे के जोर से सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। ये लो। चलो ये लो मैडम, आपका काम तो आसान हो गया। देखो देखो। चलो आप देखो, जाओ नीचे बैठो। सर ये कुछ पेपर मिले हैं, लगता है कुछ विदेशी लेन देन हुआ है। दिखाओ दिखाओ। बैंक अकाउंट, बैंक का बैंक अकाउंट HDFC का, TT भेजी हुई है। अनिल देख ले, तूने देखे नहीं होंगे ऐसे कागज। दिखा दो सर। मैं देख लो, नया नया है ना वीक में, आगे भी तेरे को हेल्प रहेगी। गड़बड़ घोटाला है गुरु। गुप्ता जी किसके कागज है ये? और इसमें हर पेज पे MG लिखा है, तुम्हारा नाम भी मुकेश गुप्ता है, क्या चक्कर है ये? हैं? देखो देखो। ये तो हमारे नहीं लग रहे जी। हमारे नाम कर दो। अबे तू अपनी इंटीग्रिटी मत खराब कर। तो ऐसा लग रहा है जी, हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट है उनका नाम है ये। MG तुम्हारा नाम? MG तुम्हारे नाम के इनिशियल? मेरे पास इतना होता तो जी मैं यहाँ बैठा ही नहीं होता, मैं अब तक विदेश चला जाता। तुम तो सुबह भी नहीं थे जब हम आए, पता नहीं रात का नशा उतार रहे थे। तो जागरण में गया था भाई साहब। जागरण में गए थे या 2 बजे कहाँ से आ रहे थे? सब खबरें हमारी सब दी हुई है। चलो कोई बात नहीं। आपके टैक्स कंसल्टेंट के कागज है अपने पास, मतलब खुद इधर ये लो। केशव, पुलकित,
ये लोग संभालो इन कागजों को, लेक्चराइज करो। मुझे लगता है इनके टैक्स कंसल्टेंट के यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है, साला बहुत मोटी मोटी ट्रांजेक्शन है। हेलो कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम। यस मिस्टर सिद्धार्थ। कंट्रोल रूम, यहाँ तो कुछ टैक्स कंसल्टेंट के यहाँ पे भी मुझे लगता है सर्वे करवाना पड़ेगा, आप लोगों को अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है काफी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया आपने? स्टेटमेंट प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड कर लिया। पेपर आइडेंटिफाई कर रहे हैं टैक्स कंसल्टेंट के? पेपर डिसोन कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि टैक्स कंसल्टेंट से परटेन करते हैं सारे के सारे। टैक्स कंसल्टेंट का नाम है गणेशन, उसका एड्रेस भी है। और एक बार हाईअप्स के अंदर ना कंट्रोल रूम देखकर जरा आदमी भेजिएगा, टीम कंस्टिट्यूट कीजिएगा, क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि जो ऑफिसर जाए उसके सामने एज अ कंसल्टेंट अपीयर हुआ हो और कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाए। ओके, विल टेक केयर। ओके। We are writing the team. You continue your work. Report after some time. Okay, okay, we will keep in touch. Okay. सर ये कुछ ज्वेलरी मिली है। कितने की ज्वेलरी होगी ये करण? सर कुछ करोड़ 2 करोड़ की लग रही है। अच्छा अनिल, 1-2 करोड़ की ज्वेलरी, और इसमें प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट में कहा था कि 2-3 लाख कैश है। ये तो वैल्यूअर ही बताएगा। वैल्यूअर बताएगा, वैल्यूअर को बुलवाओ। और यार ठीक आदमी को बुलाइए, पिछली बार वाले को नहीं, उसने गड़बड़ कर दी थी बाद में, अंडर वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी थी। बढ़िया वाले को बुलाओ। हाँ बढ़िया वाला देख के ऊपर जो बात पड़ी थी अपने को। करा मेरा नंबर ले लो। हाँ वैल्यूअर साहब, B123 सेक्टर 12 फैजाबाद में आ जाओ और अपने साथ इक्विपमेंट जरूर लाना। अरे क्या कड़क, क्या नरक की बात कर रहे हो तुम? बिस्किट की बात करते हैं, आप बिस्किट लीजिए। हाँ बिस्किट ले। बिस्कुट कड़क है। बिस्किट ले। Valuer is arriving. Excuse me sir, वैल्यूअर है घनश्याम दास। आइए आइए। घनश्याम दास, कैसा चल रहा है? कई बार सर चीज में सोच रहे थे तुम्हें बुलाया, पता नहीं कहाँ रह जाते हो तुम भी। बुढ़ापे का असर आप लोगों का मेहरबानी सर। बुढ़ापे का असर आने लग गया तुम पे। आएगा सर। इसकी वैल्यूएशन अच्छी तरह करना। थैंक यू सर। देख के ध्यान से। मैं देख लूं जी क्या कर रहे हैं। रहने दो रहने दो। तू इधर आ। सही बात नहीं करेंगे गुप्ता जी सारी। आपके कान बहुत तेज है सर, धीरे धीरे बात कर बहुत तेज है। आदमी हम की सब दूसरे किस्म के अफसर है, जरा घबराओ मत। लो भैया, नहीं सुबह से लो, तुम भी ले लो। ले लो। हो गया नहीं उसका बाद में मत बोलना, सिद्धार्थ सर के साथ ऐसे भूखे बढ़ गए। नहीं सर बिल्कुल। अच्छा चलो, लगता है तुम्हारी बीवी ने खिला पिला के भेजा। तो 1 मिनट जी। हाँ बिल्कुल जाओ, इसमें कोई चेकिंग नहीं है। जाओ देख कर आइयो, कहीं अंदर कोई चाबी वाबी छुपा रखी हो। ठक ठक की आवाज आए तो बता दो मेरे को, दरवाजा छोड़ के अंदर घुसेंगे। निकाल रख। भाई साहब अंदर भी आओगे क्या? वेट, इधर ही आओ। अनिल क्या हुआ? नहीं बिल्कुल कर रहा है। तो जाने दो तो। टाइम को लगाएगा। तबियत का ख्याल रखो, तभी बातें सारी करेंगे। तबियत का ख्याल रखो। बीपी दोबारा बढ़ गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। और बीवी को यूरोप का टूर में छोड़ के आना पड़ेगा। सारी बातें करेंगे, ख्याल रखो। तब पानी राम राम जप लो। अरे गुप्ता जी वही तो आ रहा है। अभी तो इन्होंने बच्चों के रिश्ते करने हैं, रेड होने के बाद तो बाजार भाव बढ़ जाएगा। हाँ ये तो है। लड़की की शादी के अंदर ज्यादा लगाना पड़ेगा और लड़के की शादी में ज्यादा मिलेगा। ज्यादा। वैल्यूअर घनश्याम दास, क्या हुआ? बुढ़ापे आ गए पूरे तेरे पर? सील कर रहे हैं जल्दी से। अभी सील तो बाद में करेंगे, पहले वैल्यूएशन रिपोर्ट दे। भूल गया सारे प्रोसीजर तू। अनिल तुझे कहा था यार ये बुढ़ा आदमी हो जाए। तुमने कहा था बढ़िया वाले को बुलाओ। बढ़िया कहा था, बुढ़ा थोड़ी कहा था। अब 2 बातें थोड़ी हो सकती हैं। तो बढ़िया आ गई। गुप्ता जी, आपके यहाँ ज्वेलरी घर में कितनी है? सर एग्जैक्ट डिटेल तो मेरी वाइफ को ही पता होगी। मेरे अंदाजे से 650 ग्राम के आसपास। 650 ग्राम? इतने मोटे मोटे सेट है, सारे बनियों की लगी। चलो यार कुछ। ये गुप्ता जी वैल्यूएशन रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से तो आपके यहाँ 1.25 करोड़ की ज्वेलरी है। 2500 ग्राम।
ज्यादा झटका मत लो, दोबारा से बीमार हो जाओगे। सर मैं कैसे देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल देखो, ये भी देखो, ज्वेलरी भी देखो, सब तुम्हारा है। भैया तुमने इतनी ज्वेलरी ले रखी है, मुझे बताया भी नहीं। अरे बेटे ये रिपोर्ट गलत है, बिल्कुल गलत रिपोर्ट दे रखी है इसने, देख। गलत क्यों देंगे ये? नहीं ये गलत है बिल्कुल, देख कितने वजन तो हर एक चीज को मैच कर रखा है। देखो देखो बाद में देखूंगा आपको। ये फैमिली डिस्प्यूट हो गया। गुप्ता जी दिखाने को दी थी, याद करने को नहीं दी। अरे भाई साहब ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है सर। मेरा जर्गन को भी डायमंड के रेट से वैल्यू कर रखा है सर। मैंने वैल्यू के रेट भी रखे हैं एज पर रूल्स एंड गाइडलाइंस सर। देख लो तेरा लाइसेंस कैंसिल करा दूंगा सर। आप चेक कर लीजिए सर। इसको कहिए कि इतने रुपए में मेरे से ज्वेलरी खरीदने में बेचने बेचने को तैयार हूँ। करण गुप्ता जी ऐसा नहीं होता है। सर ऐसे क्यों नहीं होता? ये रिपोर्ट गलत है यार बिल्कुल। चिल्लाओ मत, तबीयत फिर खराब हो जाएगी। तो ये गलत को तो कैसे मान लूं सर? करण को बुलाओ। करण इनके ऑब्जेक्शंस है वो नोट कर लो। आपको जो भी ऑब्जेक्शंस लिखवाने आप लिखवा दो। ये लिखो सर, ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। हैं? इसके अंदर जो है स्टोन के वेट को भी गोल्ड के वेट में काउंट किया हुआ है और इसके रेट गलत लगा रखे हैं। जर्गन के रेट को भी डायमंड के रेट में लगा रखा है, जर्गन को भी डायमंड के रेट में वैल्यू कर रखा है। और ये भी लिख लो मैं इसको बेचने को तैयार हूँ इतने रुपए में, अगर ये लेने को तैयार है। अरे जानदास तुम्हारा नंबर तो याद दिला दो यार। नंबर अरसा हो गया, मोबाइल से डिलीट कर दिया था। बताओ नंबर। चल भाई अनिल काम करे। बाकी टीम से पूछ यार कैश का क्या हुआ। डॉक्यूमेंट्स तो कैश आ रहे हैं। निकाल के क्यों बैठ गए? सर ये कैश मिला है। अरे बाप रे, कितना कैश तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। संभलने से ही परे है। खोल यार खोल, बहुत भारी लगता है। अरे बाप रे, फॉरेन करेंसी कैश भी है। ओ शाबाश। सर ये चेकबुक। चेकबुक तो यार खातों की होगी। 2 नंबर के नाम अभी संभाल के रख, इधर ले आओ। गुप्ता जी आपके घर में कितना कैश था? आपके भाई ने बताया 2 से 3 लाख रुपए। और ये कैश कितना मिला? 61,15,000। 61,15,000। 2-3 लाख रुपए से 61,15,000 बहुत लंबी छोड़ा हमारी। कौन से नेता का पैसा ये? अफसर का होगा, नेता का नहीं होगा। तो बताओ नाम, हमारे पास दूसरे ही तरीके नहीं। तो मेरे ऑफिस का पैसा है सर, बिजनेस का पैसा है। बिजनेस का पैसा 61 लाख घर पे क्या कर रहा है? डबल हो रहा है। रास्ते में घर पे रात को घर में नहीं छोड़ते हैं सर पैसे को। अच्छा इसलिए घर पे ले आया। कोई बात नहीं, अभी पता कर लेते हैं आप। हेलो यस कंट्रोल रूम। यस सर। बिजनेस प्रेमाइसेस के अंदर पुनीत हैं डीडीआई के, उनसे पूछिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब तक स्ट्राइक कर चुके होंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना कैश रिकॉर्डेड है? पुनीत अभी सिद्धार्थ ने प्रेसिडेंट से बताया है कि वहाँ कैश निकला है। एसएससी क्लेम कर रहा है कि वो कैश जो है वो बिजनेस प्रीमिसेस का है। वहाँ चेक करके बताओ उनकी बुक्स में कितना है। होल्ड करिए मिस्टर सिद्धार्थ। ओके। आप बिजनेस प्रीमिसेस में जो मिस्टर पुनीत हैं आप उनको कांटेक्ट करके और जल्दी से कंट्रोल रूम में दोबारा बताएं। ठीक है मैं बात करता हूँ। ज्वेलरी कितनी निकली है? ज्वेलरी 2.5 किलो निकल चुकी है सर। और बुक्स के अंदर पर्सनल के अंदर 650 ग्राम थी। वैल्यूएशन का कोई डिफरेंस? वैल्यूएशन का डिफरेंस किसको बता रहा है? कर रहा है, बाकी रिकॉर्ड करा दिया। मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा। अगर कोई वैल्यूएशन में डिस्प्यूट हो तो सीज कर लेना, छोड़ने की जरूरत नहीं है। सर वो तो फाइनलाइजेशन आपसे पूछ के करूंगा। रिपोर्ट बताएंगे सर। ठीक है करो। सेटिंग कैसे होती ठीक है। सिखा रहा हूँ, पूरा काम जल्दी करा रहा हूँ, टेंशन मत लो। यस पुनीत। पुनीत 11 लाख रुपए है। अनिल पुलकित से लिखवाओ 11 लाख है बिजनेस प्रेमाइसेस पे कैश। लिखो जी। और यहाँ मिला गुप्ता जी आपके यहाँ 61 लाख रुपए कैश। 61,15,000। हाँ 15,000 ठीक है। डिफरेंस बताइए किस वजह से कैश में डिफरेंस है? सर वो तो मैं बिजनेस पे जाकर बताता हूँ। चलिए ठीक है, अब हम आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं मुकेश जी। जी सर। सर अभी तो करी थी आपने। पूरी नहीं हुई। भाई साहब सस्पेंड की थी टेम्परेरली सस्पेंड की थी। अभी बताओ हम जी। दोबारा भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, दोबारा भी ले सकते हैं। जी सर बताइए। जितनी बार चाहे उतनी बार ले सकते हैं। जी मालिक हो सर। ठीक है। हाँ तो ये बताइए कि आपके यहाँ से जो डायरी मिली है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपका क्या लेन देन है? आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट में प्रिजम्पशन है कि कोई भी कागज आपके यहाँ से निकले वो आपका माना जाएगा। इस बारे में आपको क्या कहना है? आपने पहले भी देखी थी ये। तो हमारे टैक्स कंसल्टेंट बताएंगे। हमारे टैक्स कंसल्टेंट बताएंगे। आप उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो छोटा है पहली बार देख रहा है।
बार बार देखने की दुआ दो, पहली बार क्यों, तरक्की और होगी। बार बार आएंगे। अच्छा चलिए ये बताइए, आपके यहाँ पर कैश मिला 61,15,000 और कैश आपके हिसाब से किताबों में है 10,75,000, तो बाकी का जो कैश है वो किससे बिलोंग करता है? तो जी वहाँ किताबें देख के और टैक्स कंसल्टेंट बताएगा, हमारा देख के कि क्या एंट्री रह गई थी करनी। अच्छा किससे पैसे आए। कोई बात नहीं, आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं जी, आप कुछ और बताना चाहते हैं? तो आप पूछ लो। आयकर के कुछ अच्छे प्रावधान हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे आपको। आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं। अनिल, पुलकित, इनसे लिखवाओ इनकी हैंडराइटिंग में कि इन्होंने सारा बयान पढ़ दिया है, समझ लिया है और इनके सामने रिकॉर्ड किया गया और इनके कोई प्रेशर, कोई क्वेश्चन, कोई थ्रेट नहीं की। लेकिन थ्रेट तो दे रहे हो जी आप। हाँ दे रहे हैं। आपने तो कहा जेल में बंद कर देंगे, मोटा डंडा मारेंगे। अभी मारा कहाँ है? विटनेस भी तो है। चलो अब गुप्ता जी से साइन, अब गुप्ता जी से साइन करवाते हैं। गुप्ता जी एक काम करो यार, तुम गुप्ता इनको बोलो, शर्मा जी को, वो सब जो बोल रहे हैं ना ये सब रिकॉर्ड कर लेंगे इनकी बातें कम से कम। कोई बात नहीं, ये हमारी रिकॉर्ड करने की जरूरत कर रहे थे ना, इनको इसी पे रिकॉर्ड कर लेंगे, तब इनको समझ में आ जाएगी। बहुत देर से धमकाए जा रहे हैं, जो हमारा नुकसान होगा तो हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं। अभी मैं इनसे बात करता सारी हूं, चाय पिएंगे आपकी, घबराओ आराम मत, करो। पहले काम पूरा करने दो। पुलकित, गुप्ता जी की स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखो, द स्टेटमेंट इज नाउ बीइंग रिज्यूम्ड एट 12:30 PM in the evening. The statement of Gupta ji temporarily suspended earlier is now being resumed. हाँ गुप्ता जी बताइए, इस डायरी के बारे में आपको क्या कहना है? सर आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन एनीथिंग नाउ। अच्छा, और कैश जो मिला आपके यहाँ 62 लाख, उसका क्या सोर्स है? सर वो मैंने बताया ना, बिजनेस से जाकर ही बता पाऊंगा। और ये जो ज्वेलरी मिली 2.5 किलो, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता सर, सारे डिफरेंसेस एक्सप्लेन हो जाएंगे। स्टेटमेंट में कहा था कि आपके फॉरेन बैंक अकाउंट्स नहीं है सर और मेरा कोई आपका फॉरेन फॉरेन बैंक बैंक अकाउंट निकला है। तो मेरा कोई फॉरेन बैंक अकाउंट नहीं है सर। अच्छा, ये भी किसी और का? चलिए कोई बात नहीं। और ये जो घर के बेनामी ट्रांजैक्शन मिली है, बुकिंग मिली है प्लॉट की, उसके बारे में आपको क्या कहना है जो आपकी वाइफ के नाम में है? सर वो सब रिकॉर्डेड है, वो दैट विल बी एक्सप्लेन्ड। बाद में टैक्स कंसल्टेंट से पूछ के मैं आपको बता दूंगा। सब देखिए सर, इसमें चेक से पेमेंट लिखी हुई है, आप बता रही है। अरे गुप्ता जी सारी बातें सामने दिखती है, कच्चे की भी रसीदें पड़ी हुई है, बेवकूफ थोड़ी है। 10 साल हो गए इनकम टैक्स की नौकरी करते हुए, कच्चे की रसीदें भी लगी हुई है और जिसने कच्चे में लिया अभी तो उसका भी बैंड बाजा बजाएंगे अनिल। ठीक है, साइन कराओ गुप्ता जी से। अरे भैया चिंता मत करो, साहब बहुत बढ़िया आदमी है। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, काम अच्छे तरीके से करूंगा। कोऑपरेट करो, हम लोग भी कोऑपरेट करेंगे। सर आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं सर। हम लोग सब अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। चलो बाकी भी इतना काम करो, कंट्रोल रूम में मैं बात करता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम। यस कंट्रोल रूम, यहाँ कैश जो था वो 61 लाख के करीब कैश मिला है। 61 समेट लो सारे सारा। टू बी वेरी प्रिसाइज। ज्वेलरी मिली है 2.5 किलो जो कि काफी एक्सेस है और कोई सोर्सेज के बारे में किसी भी बारे में कुछ नहीं बता रहे। एज पर लाओ जो डिटेल्स हैं और कुछ घर खर्चे के लिए छोड़ दो, बाकी सीज कर लाओ। सारा सीज करना है? नहीं नहीं, कुछ तो छोड़ दो यार। संदीप भी तो यहीं पर है। हाँ, थोड़ा बीमार बात करने की कोशिश करो, भटक गया तो अपने को दिक्कत है। ठीक है। और ये दूसरी अनटूवर्ड इंसिडेंट तो नहीं हुआ कोई वहाँ? अनटूवर्ड इंसिडेंट कोई नहीं हुआ, बार-बार कुछ और अलग अनाप-शनाप बातें कर रहे हैं। ये अगली बार एडीआई बदल के देना, मुझे डीआई लगता है, ये डाउटफुल इंटीग्रिटी का लगता है। चलिए बाद में देखेंगे उसको। ठीक है। और दूसरी कोई सरेंडर की बात करूं क्या? देखो ऐसा है कि अगर कुछ प्यार मोहब्बत से करता हो तो ठीक है, नहीं तो उसको बाथरूम में बंद कर देना। बाथरूम में पिछली बार की तरह डंडा डाल दो मोटा वाला। दो लगा भी दिए उसको। सेक देता हूं, लगता है नहीं हम प्योर गुप्ता जी को बोल देना, वो पिछली बार होगी ना, वो समझा दो थोड़ा जाके। हां गुप्ता जी, मैं अभी फोन करता हूं। हां कर दो। और फिर उठा दे तुमने फोन दे। क्या करते हो तुम लोग? सर आप हमारे बाबू धमकाए जा रहे हो, ऐसा थोड़ी चल सकता है। क्या करते हो तुम लोग नए लड़के? अगली बार दिन में पोस्टिंग के टाइम पे देखूंगा कैसे आओगे दिन के अंदर। हां गुप्ता जी, चाबी मिली है। चाबी मिली है, गोदरेज की चाबी है तो किसी लॉकर की चाबी होगी। 234 नंबर। गुप्ता जी नंबर तो बड़ा अच्छा है। क्या रखा है इस लॉकर में? सर मैंने बताया तो साहब, लॉकर मेरे पास है, मेरी वाइफ है मेरे नाम में। इस लॉकर में क्या है? सर ये तो वहाँ जाके पता चलेगा, वाइफ ही ऑपरेट करती है इसको। अच्छा मैडम एक काम कीजिए, इसको रख लीजिए और रेस्टोरेंट ऑर्डर तैयार करवाइए। इसका भी, इसको भी रेस्टोरेंट करवाना पड़ेगा। गुप्ता जी कुछ सरेंडर की बात समझाई जाए आपको, बहुत सामान निकल रहा है आपके यहाँ। तो थोड़ा सा है, पर मेरे को किसी टैक्स कंसल्टेंट से बात तो करनी दीजिए सर। कोई परमिटेड नहीं है,
इस वक्त साहब आपको समझ लेनी है, कंसल्टेंट किसी के काम में नहीं आता। ये आपका अपना दुख है या आपकी अपनी कठिन की हुई काली माया है। इसको आपने देखना है कि किस तरीके से आप अपने हाथ सफेद कर सकते हैं, वरना हमारा क्या है, आज 2 थप्पड़ यहाँ मार देंगे, अगली बार जहाँ पे भी दिखोगे नजर झुकाते हुए मिलोगे। और 10 साल तक इनकम टैक्स पीछे नहीं छोड़ता आपका। ये मत सोचना कि हम आए और चले गए। उसने ठीक कहा था, बार बार भी आ सकते हैं, दोबारा भी आ सकते हैं। देख लो, मन पक्का कर लो, बात कर लो, अपने भाई से सलाह कर लो। पहले बिजनेस से तो पड़े सर। चलो ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अनेक्चराइज कर लो और सारा का सारा कैश सीज कर लो। सर सारा कैश घर के खर्चे के लिए भी पैसे छोड़ेंगे सर। 61,15,000 रुपये है, बीमार है, पता लगे अपोलो में एडमिट कराना है, 15 छोड़ दे। बिल्कुल छोड़ ठीक। भाई साहब मेरे लिए भी तो छोड़ दो कुछ। अरे तेरे कोई खर्चे नहीं आया, तेरी शादी हुई, सुबह सुबह वैसी जॉगिंग करने जाता है, दारू तू पीता नहीं है, रात को सत्संग में जाता है, बच्चे तेरे हैं नहीं, तू कैश का क्या करेगा है? भाई साहब कोशिश तो सर कुछ ना कुछ तो 7 लाख रुपए कोई सुनने की जरूरत नहीं, 60 लाख रुपए इनके सीज कर दो। जी सर। और ज्वेलरी का ज्वेलरी का तो ये कुछ वाइफ को भेजने थे, वहाँ पे यूरोप में भेजने थे मेरे को बिजनेस के लिए, तो प्लीज वो तो छोड़ दो। ये सारे तुमने यूरोप में ही तो भेजे हुए, स्विट्जरलैंड टीटी जो हवाला की हुई है, ये भी भेज देना कन्वर्ट करके। ये तो हमारे पकड़े गए कागज, वरना तो तुम भारत सरकार को बेवकूफ बना रहे थे 10 साल से। ज्वेलरी सारी की सारी सीज कर लो इनकी। सर सारी ज्वेलरी मत सीजिए, मेरी बीवी मुझे मारेगी सर, बहुत जरूरी है। हमारी मियां बीवी के अंदर की बात है, बाहर वालों को क्यों बताते हो? नहीं सर ये ज्वेलरी को आपस में निपटा लो। सर ज्वेलरी सारी ज्वेलरी तो सीज भी नहीं कर सकते सर। मेरे को अनिल बड़ा रिश्ता है रिश्ता, ध्यान दिया हो इसको किसी ने पूरा। चलो कोई बात नहीं, इसकी फैमिली एंटाइटलमेंट को 1916 के हिसाब से देख लो। ठीक है, और लेक्चर्स पर सारे के सारे सीजन मेमो पे इनके साइन ले लो, पंचनामे सारे प्रिपेयर करो। जितना कैश इनको वापसी किया गया है लिखवाओ, रिसीव्ड बैक कैश सीख ले, लिखवाओ उससे रिसीव्ड बैक कैश 1,50,000। यस मैडम, व्हाट कैन आई डू? हमारे आइडेंटिटी कार्ड और ये रहा हमारा सर्वे ऑथराइजेशन। लेकिन क्यों मैं यहाँ क्यों? सर आपको पता ही होगा आपके क्लाइंट एबीसी प्राइवेट, हाँ जी सर। सर आपको पता ही होगा कि आपके क्लाइंट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पे सर्च हुई है। पता तो चला मैडम, आप यहाँ कैसे? सर तो हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिससे हमें पता लग रहा है कि आप उनकी टैक्स रेट करने में हेल्प कर। क्या एविडेंस मिला है आपको वहाँ? सर एक डायरी है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है और आपका नाम लिखा है। असेसी ने भी ऐसा कहा है कि उनके ट्रांजैक्शंस की वो डॉक्यूमेंट सर सर्च अभी कंक्लूड नहीं हुई है, तो आपको पता ही होगा कि अभी तो हम वहाँ से एविडेंसेस रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, बट विदाउट सीइंग द रिकॉर्ड मैं हेल्प कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। ठीक है सर, तो आप हमें दिखा दीजिए इनके रिकॉर्ड्स क्लाइंट के। आप बिल्कुल 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 मैडम, उनको एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बता देना कहाँ कहाँ रिकॉर्ड रखा है। मैडम हम लोग पूरा रिकॉर्ड क्लाइंट वाइज मेंटेन करते हैं सब जगह, वहाँ यहाँ। सपोज इफ यू वांट see other shelf also you can check it so that you can be rest assured this record is not kept anywhere else. ठीक है सर, हम देख लेते हैं, हमें जैसा ठीक लगे। ओके मैडम। आप बता दीजिए। मैम एबीसी की सारी फाइलें उस शेल्फ में हैं। ठीक है, और आप ना आप एक काम कीजिए कि शेल्फ में जैसे कह रहे हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की फाइल्स जहाँ है आप यहाँ तो अच्छे से चेक कर लीजिएगा और जो आपको डॉक्यूमेंट रेलेवेंट लगे आप वो ले लीजिए। अब इनको लेके जाइएगा आप इस पर नजर मार लीजिएगा कि कुछ गलत तो नहीं बोल रहे। आइए मैम। गणेशन जी तब तक हम आपकी 133A की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल। प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। माय नेम इज गणेशन, सन ऑफ महादेव, रेजिडेंट ऑफ A17/56 फरीदाबाद। अच्छा, तो आप एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से कैसे रिलेटेड हैं? आई एम ओनली द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ एबीसी फॉर द 8 years। ओके, सर्च के दौरान हमें एक डायरी मिली है जिसमें ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपका नाम रिकॉर्डेड है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैडम आपको मिली है बट जो तो दिखाया नहीं है, सो आई कैन नॉट एबल टू कमेंट, ओनली द असेसी कैन एबल टू हेल्प यू ऑन दिस। ठीक है सर। सर आप इस पे साइन कर दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। आराधना आपको तो दिखा दिया रिकॉर्ड वगैरह दिखा दिया उनको? ठीक है, आपने चेक करा है इसको? गणेशन जी हमें ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड करने होंगे। मैडम प्रॉपर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ
हाँ जी बिल्कुल, हम आपको इन्वेंट्री का अपना डिटेल दे देते हैं। ओके, इसको प्रॉपर रिकॉर्ड कर लीजिए। सर ये रहा आपका इम्पाउंडिंग ऑर्डर। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, हमें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम आपके पास जरूर आएंगे। ओके मैडम, आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू सर। ऊपर आप जाना तो जा सकते हैं, कर दें। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जी आपको किससे मिलना है? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। मैम साहब, जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ। एक आदमी भाग रहा था, उसको पकड़ के ले आए। अच्छा, तो इन्हें पता लग गया हम आने वाले हैं। कहाँ भाग रहे थे? कितना कैश है? 4-5 लाख रुपए। आप कैश जमा कराने जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कितना कैश है? सर मैनेजर साहब ने कहा था कैश जमा करना, अभी तो मुझे पता नहीं कितना है। कौन है मैनेजर साहबा? सामने से आ रही। हाँ जी सर। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। ये रहे हमारे आइडेंटिटी कार्ड हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सर्च वारंट। ये लीजिए सर, सर्च सर्च वारंट। आइए आइए प्लीज, आप बैठिए प्लीज प्लीज प्लीज। सर्च स्टार्ट करने से पहले दो गवाहों को बुलाओ। अच्छा कुणाल, जरा फटाफट जा, 2 नेबर्स को बुला ला, उनको कहियो अपने आईडी कार्ड लेके आएंगे और कुछ खाने पीने का इंतजाम करना। खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से बुलवाओ और इसके साथ हमारा इंस्पेक्टर जाएगा। सर इस बैग में तो बहुत सारा कैश मिला है। काउंट करो। सब लोग काम पे लगे रहो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले, हार्ड डिस्क मिले, पेन ड्राइव मिले, उन सबका रिकॉर्ड बना लेंगे। हाँ तो मैडम, ये कैश बुक में रिकॉर्डेड है या? सर वो तो कल शाम को ही ना सर पार्टी से रिसीव हुई, तो अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं करी, बस चाय पी के रिकॉर्ड करने लगी थी, उससे पहले आप ही आ गए। सर इसके अंदर तो बहुत सारा कैश है। काउंट कर लो आप इसे। हाँ हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ। मुझे हिसाब किताब कितना कैश है, कितना बैंक है आपकी किताबों के हिसाब से ये बताओ और सेलिंग पार्टियों की लिस्ट दो। 17 लाख कैश है। ओके, कोड कर लो। हाँ जी सर, 1 मिनट में फटाफट ढूंढ के आपको देती हूँ। सर ये लीजिए सर, 10 लाख रुपए का कैश है और 70 लाख लक्ष्य? रुपए का स्टॉक। ये आप ये बार रिपोर्ट देखो सही है या नहीं। ओके, ये बताओ स्टॉक कहाँ रखा है? सर यहाँ अलमारी में। भूलिया नहीं? एक बार चेक करो इसको, काउंट करो इसको। अच्छा, ओके ओके। कितनी ब्रांच है आपकी कंपनी की? सर हमारी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ यही एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन करते हो आप? यहीं पर ERP सॉफ्टवेयर है। कब तक अपडेटेड है? सर कुछ 14-15 मई तक होंगे। आज 23 तारीख हो गई और आपके रिकॉर्ड से 14-15 तक अपडेटेड है? सर वो ना हमारा ना अकाउंटेंट भाग गया है, तो क्या करें, बड़ी मुश्किल से यही हर जगह यही सुनने को मिलता है हमें। कोई बात नहीं, वाउचर तो होंगे? हाँ जी ये लीजिए, कुछ 4 मई तक होंगे सर। ओके ओके, दीजिए दीजिए। बेदी
ये एक बार चेक करो किताबों के हिसाब से सही है या नहीं है। ओके, ये एक नोट पैड मिला है। इस नोट पैड में क्या ट्रांजेक्शन्स हैं? ये नोट पैड सर ये तो छोटे साहब का लग रहा है। छोटे साहब कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। ओके, इतने छोटे साहब आते हैं और आप कुछ और बता दीजिए। सर पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? अच्छा, ये बताओ आपकी किताबों में जो स्टॉक है उसकी आपने पूरी डिटेल बना रखी है? नहीं सर, मैंने आपको बताया ना, हमारा अकाउंट्स अपडेटेड नहीं है, हमारा अकाउंटेंट भाग गया है, तो कुछ भी डिटेल नहीं है मेरे पास सर। बस जितनी आपको डिटेल बताई है उतनी ही है। अरे एक बार ये सारे देखते रहो ना, कुछ छोड़ना मत, एक एक चीज चेक कर लेना और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले उन सबका रिपोर्ट्स बना लेना। ये लीजिए सर, साहब आ गए। आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार था। ये लोग कौन हैं? ये हमारी दूसरी टीम है जो आपके यहाँ बिजनेस प्रोवाइसेस पर आई हुई थी। ये पहले से बैठे थे यहाँ? पहले से क्या साथ साथ बैठी थी? ऐसे थोड़ी ना, वरना तुम घर से सब कुछ माल साफ करवा देते अगर हम घर पे नहीं करते तो। नमस्कार सर। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत कुछ मिला है। कंटिन्यू करो, चलो, और कंट्रोल रूम में अपडेट करते रहना। ओके ओके। मेरी या मेरी टीम की कोई जरूरत तो नहीं है? नहीं होगा तो हम आपको बताते हैं। चलो ओके ओके सर, चलो, बेस्ट ऑफ लक। ओके, चेक कर रहे हैं। मुकेश जी आप बैठिए। जी 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 विजय जी आप भी बैठिए। हमें आपकी 132(4) की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, प्लीज ओथ लीजिए। जैसे वहां कराई थी उसी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, अभी आपको पता चल गया होगा। ओके, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आपको दोबारा बताऊं? हाँ जी। मेरा नाम मुकेश गुप्ता है और मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूँ। ओके। विजय गुप्ता जी मेरे बड़े भाई साहब हैं। सर्च के दौरान एक नोट पैड मिला है, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन है, प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। हेलो, उसके बारे में तो भैया ही बता पाएंगे। आपको कुछ नहीं पता? नहीं, ऐसे मैं गलत बता दूं उसका कोई फायदा नहीं है ना जी। ओके ओके। सर्च के दौरान आपके रेजिडेंस और बिजनेस प्रीमाइसेस में कैश मिला है जो कि 78,39,000 का है, जिसमें आपकी रेजिडेंस में 61,15,000 का है और बिजनेस प्लेस में 17 लाख का है, जबकि आपकी किताबों के हिसाब से 10,74,000 पे आ रहा है। क्या आप बताएंगे ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो हमारा अकाउंटेंट 15 दिन से छुट्टी पे है साहब, वो उसने अकाउंटिंग एंट्री पूरी है हमारी। नहीं सर वो हमारा अकाउंटेंट ही भाग गया है। बताइए साहब, अब थोड़ा 2-4 दिन का टाइम दीजिए, तो हम आम आपको बात टैली है, करके दे देंगे हर सब। कहीं यही प्रॉब्लम मिलती है हमें। अच्छा, आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं जी, जो मैंने कहा आपको बिल्कुल सही कहा है। चलो ठीक है, अब हम विजय जी से इनका स्टेटमेंट नोट कराते हैं। विजय जी आप इधर आ जाइए प्लीज। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी, अच्छी बात है ये तो। हमें आपकी 132(4) की स्टेटमेंट लेनी है। तो वहाँ पर हो चुकी है सर मेरी स्टेटमेंट, तो वहाँ रिकॉर्ड की थी साहब ने। यहाँ पे अलग से होगी और दोबारा होनी है। चलिए और लीजिए। वो बार बार ओट लेनी पड़ेगी क्या? पहले अभी तो सिरे तो ओट ली है। अगर आपने सच बोला होता तो हमें यहाँ आना ही नहीं पड़ता। ओके, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। माई सेल्फ विजय गुप्ता, सन ऑफ जेपी गुप्ता, रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 12 फरीदाबाद। ओके, ड्यूरिंग सर्च एट योर रेजिडेंस और बिजनेस प्रीमाइसेस हमें कैश मिला है जो कि 78,39,000 का है, जिसमें आपके रेजिडेंस में 61,15,000 का कैश मिला है और आपके ऑफिस में 17 लाख का कैश मिला है, लेकिन आपकी किताबों के हिसाब से 10,74,000 है। क्या आप बता सकते हैं ये डिफरेंस क्यों है?
हाँ सर, ये अभी बताया ना, मोटे मोटे तौर पे डिफरेंस ये है, कुछ डेटर से पेमेंट आई थी, कुछ पार्टियों से पेमेंट आई थी, वो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई बुक्स में, और बाकी तो उसको एग्जैक्टली रिकंसाइल करके तो हम आपको बाद में ही दे पाएंगे। अच्छा, अक्षय नोट करते रहना जो ये बोल रहे हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च बिजनेस प्रीमाइसिस में आपके यहाँ स्टॉक मिला है 1,15,00,000 का, जबकि आपकी किताबों के हिसाब से 70,14,000 का है। तो ये डिफरेंस किस वजह से है? सर एक बार मैं अपने मैनेजर से बात कर लूँ, मुझे पता चल जाएगा कि क्वांटिटी में डिफरेंस है या आप रेट गलत लगा रहे हैं, क्या है, एक बार बात करने के लिए। मैम, जो हमारे यहाँ स्टॉक में डिफरेंस है, क्या वो क्वांटिटी में डिफरेंस है या ये सिर्फ वैल्यूएशन गलत कर रहे हैं? सर सिर्फ वैल्यूएशन में ही प्रॉब्लम है। कुछ तो पुरानी रद्दी पड़ी हुई है वहाँ। मुकेश जी, जब आपसे पूछा था आपने बता दिया कि गुप्ता जी बताएंगे, फिर आप चुप रहे प्लीज। सर मैं बताता हूँ आपको, हमारा जो काम है वो किताबों का काम है सर। ठीक है, अभी आपको याद होगा CBSE ने सिलेबस चेंज कर दिया सर, तो जो पुरानी किताबें हैं सब बेकार हो गई सर, उनकी वैल्यूएशन तो जीरो हो गई सर। कोई बात नहीं, वो जो हमारे ऑडिटर हैं उन्होंने भी इसको कहा था कि इसकी वैल्यूएशन जीरो लेनी है, तो आपने तो उसकी वैल्यूएशन ले रहे हैं सर, क्वांटिटी में तो कोई डिफरेंस हमारी नहीं। वैल्यूएशन एज पर रिकॉर्ड है और आपके जो भी डिटेल है उसके हिसाब से है, हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिए, जो भी आपके यहाँ से निकल के आ रही है वही ले रहे हैं। आप इसे नोट कर लो, हम इसे बाद में देखते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग द कोर्स एक नोट पैड मिला है, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, आप बता सकते हो क्या ट्रांजेक्शन्स हैं? सर राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टेल दिस अबाउट दिस नोट पैड। मुकेश जी से पूछा तो कहते हैं भाई साहब बताएंगे, भाई साहब से पूछा तो वो बोलते हैं कि सर आप देखिए मैं बाद में बताऊंगा। आप हमें गोलमोल घुमा रहे हैं क्या? 8 बजे से हम आए हुए हैं, आप लोग हमारे सिर पे बैठे हैं, 12:30 बज गए सर। ह्यूमन बीइंग तो आप भी हैं सर। हम भी 4 बजे से तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। तो वैसे भी बहुत सीरियस पेशेंट है जी ये। वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है क्या हुआ था। आपका कोई रिकॉर्ड अपडेटेड है? जो भी हम पूछते हैं आप बताते हैं ये अपडेटेड नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है। अकाउंट चला गया आपको, मैं खुद तो बैठ के अपडेट करूंगा नहीं सर। विजय जी, ये बिजनेस आपका है, प्रीमाइसिस आपकी है, इसमें जितना भी कैश मिला है, स्टॉक मिला है, ज्वेलरी, वो सारी आप ही की है। आप कैसे कह सकते हैं हमें नहीं पता या रिकॉर्डेड नहीं है? उसके अलावा एक फॉरेन बैंक अकाउंट मिला है जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। सर अब मैं टाइम पे इस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं अभी आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरे कंसल्टेंट आपको बाद में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, मैं खुद आकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप दोनों ये समझ लो बात, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, अगर इसमें से कुछ गलत निकला तो आप लोगों पर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जा सकता है। इस वजह से 10 बार समझाई जा चुकी है, बार बार हमें परेशान किया जा रहा है, आप हम पर अनड्यू प्रेशर डाल रहे हैं। आप लोगों कंट्रोल रूम, मिस्टर पुनीत। यस यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? सर सरेंडर करना चाहती है पार्टी, तो इन्हें थोड़े प्रोविजंस बताने हैं, क्या सरेंडर के प्रोविजन। आप जो है वो मिस्टर सिद्धार्थ को फोन करिए, वो जो है इन पे यहाँ पे अभी बिजनेस प्रीमिसेस में जब आए हैं तो ये रेजिडेंस पे थे, और उनको बुलाइए, वो जो है वो इसको कंक्लूड करें सर्च को। ये रात का 1 बज गया ऑलरेडी। ओके मिस्टर सिद्धार्थ। हेलो कंट्रोल रूम। यस प्लीज कम। ओके कंट्रोल रूम, मैं पहुंचता हूं, प्रीमाइसिस पर पहुंच रहा हूं। हाँ बिजनेस प्रीमिसेस में जाइए, कंक्लूड करिए जल्दी से। क्या हुआ पुनीत, क्या प्रॉब्लम आई? सर यहाँ पे तो बहुत डिफरेंस मिल रहा है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, घुमा जा रहे हैं। बैठिए सर, बैठिए, आइए आइए। क्या कितना कैश निकला यहाँ पर एक्सेस? सर इन्होंने किताबों में दिखा रखा है 10,74,000, जबकि एक्चुअल में कैश निकला है 17 लाख का, और यही पोजीशन इन्होंने स्टॉक की है। अच्छा, स्टॉक निकला है इन्होंने पास। इधर आओ, चलो मुकेश जी। गुप्ता जी आप घर पर कह रहे फिर इलीगल कर रहा है। हाँ सर, मैं तो चाह रहा हूँ, मैंने आपको बताया भी था। काम की बात करते नहीं, नंबर नंबर मांगते रहते हो। चलो कोई बात नहीं, रात का 1:15 बज गया है, आपको भी निजात देते हैं। अब ये जो लोहा लंगड़ आपके यहाँ से इतना मिला है, इसको किस तरीके से करोगे? ये तो भारत सरकार सारा ले जाएगी। आप समझदार आदमी हो, बाल बच्चेदार आदमी हो, मैच्योर आदमी हो। सर मैंने कहा ना, जो इस मुसीबत को यही भी यही खत्म हो जाए, कोई इस तरीका ऐसा तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन यह है कि इसके अंदर से आप टैक्स दे सकते हैं, भारत सरकार को सरेंडर कर सकते हैं, और आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मैं टैक्स दे दूं और शैम की नींद सोऊं। हाँ, हमारी भारत सरकार का भी यही नारा है, पे टैक्स करो रिलैक्स। आप लोग दोनों भाई बात कर लो, समझ लो, मैं आपको समझा देता हूँ, समझ लो गुप्ता जी, बातें तो दिन की भर चलती रहेंगी भाई। समझा दो जी, सस्ते में काम हो जाए अपना। सस्ते में नहीं, बिल्कुल वाजिब तरीके से, बिल्कुल कानूनी रूप से ही काम होगा। देखिए, आप जो भी एडिशनल इनकम सरेंडर करेंगे
उस एडिशनल इनकम के ऊपर आपको आज टैक्स देना पड़ेगा और उतनी अमाउंट के इक्विवेलेंट आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, अगर कल को आपने सरेंडर को आपने कहा कि जी हम ये सरेंडर नहीं मानते, रिट्रैक्ट किया, तो फिर भारत सरकार और हमारे अधिकारी बहुत बदल जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्योंकि क्या है कि हम आपके हाथ से सर्च को कंक्लूड करके जाएंगे, है ना पुनीत? और अगले दिन सुबह हमारे मेंबर इन्वेस्टिगेशन तक, सीबीडीटी तक फैक्ट से रिपोर्ट चली जाती है आपके पैन नंबर के साथ कि किस किस एसएससी के यहाँ कौन सी तारीख में क्या एक्शन हुआ, कितनी एडिशनल इनकम आई और कितना टैक्स है। तो हमारे ऊपर जो बॉसेस होते हैं, कल को आप रिट्रैक्ट करोगे तो उनको भी गुस्सा आएगा, और वो गुस्से का नतीजा तो आपको पता ही है। तरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू तरबूजे पे गिरे, कटना तो तरबूज नहीं है। तो आप देख लीजिए, आपके यहाँ एक एक्सेस कैश भी है, एक्सेस ज्वेलरी भी मिली है, स्टॉक में भी डिस्क्रिपेंसी है, यस यस, और डायरिया भी मिली है। तो आप इसके प्रारूप के अंदर अपना सरेंडर दे सकते हैं। मैं भाई से बात करके बता, आप बात कीजिए दोनों। 2-3 लाख फॉरेन बैंक अकाउंट के जो डिस्क्लोज है। अच्छा, फॉरेन बैंक अकाउंट भी निकले हैं। कंसल्टेंट से बात हो, हम अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं क्या? गुप्ता जी पॉसिबल तो नहीं है। कर दो, अलाउ कर दो, अलाउ कर दो इनको, अलाउ कर दें, ठीक है। फोन मिलाओ पुनीत अपने फोन से इनके कंसल्टेंट का। अपने से नहीं मिलाओ? आप मत मिलाइए, आपका आपको मना नहीं किया था वहां पर। क्या करते हैं आप? नाम बता प्लीज, नाम नंबर। संजय अग्रवाल, संजय अग्रवाल। अच्छा, अभी बदल गया कनेक्शन से। वही संजय अग्रवाल जो स्पेशल ऑडिट और सच वाले स्पेशलाइज्ड हैं। बहुत बढ़िया। यस, हेलो संजय अग्रवाल दिस साइड। संजय जी, हम विजय जी के यहाँ पर आए हैं। कौन विजय जी? डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, विजय गुप्ता। अच्छा अच्छा, तो सर ये कुछ बात करना चाहते हैं हमारे सीनियर आपसे। कराइए कराइए सर। मिस्टर अग्रवाल क्या हाल? यस फाइन सर, एब्सोल्युटली फाइन। कहाँ पे आज सैर हो रही है सर? अरे शहर कहाँ अग्रवाल साहब, आज तो सरकार की नौकरी कर रहे हैं और आपको भी जगा दिया सोते हुए। कोई बात नहीं, कोई बात कैसे कैसे एसएससी रखे हो अग्रवाल साहब, ये चले टैक्स भी नहीं देते, चोरी भी करते। अरे एक बार आया था, उसके बाद आया ही नहीं दोबारा। आपके तो बड़े नाम जपता है। चलो ये लो बात करो, इसको समझाओ जरा। डिस्क्रिपेंसीज मिली है, कैश भी मिला, एक्सेस स्टॉक भी मिला है, जरा इसको समझाओ। कराइए कराइए। ये लो गुप्ता जी बात करो। हाँ जी संजय जी। यस सर। यार सवेरे से ढूंढ रहे हैं आपको, इस मुश्किल की घड़ी में भी नहीं आए आप तो। अब ऐसे ही है, जब इनकम टैक्स वाले आएंगे तो हम कहाँ आए पहुंचेंगे। अब रात हुई ना, आप पहुंच गए। बताइए बताइए। अब ये बात सरेंडर की चल रही है। हमारे यहाँ लगभग 60 लाख रुपए कैश फालतू है, और ठीक है, भी 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपए के आसपास की ज्वेलरी फालतू है। हाँ, और वो फॉरेन का जो अकाउंट है जो बता रखा था आपको, जिसके लिए हम आए थे, वो एंट्री ब्लैक मनी के लिए, उसका भी बताना हो, वो भी करना है। तो बताइए क्या करिए, कितने रुपए सरेंडर करें सर? गुप्ता जी देखो, जो डोमेस्टिक है उसको तो निपट सकते हैं अभी, बाकी की तो मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वो एंटी बिल जो है वो ब्लैक मनी, उसमें अभी स्कीम बाकी है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें देख करके और पीस ऑफ माइंड कर लो। रात को 2 बज रहे हैं, क्या फायदा, ठीक ठाक करके जो आपको लगता है बात कर लो। कोई दिक्कत होगी तो मैं आ जाऊंगा। मुकेश भाई बात करेंगे। अच्छा कराइए कराइए। सर जी प्रणाम। हाँ जी जी सर एक चीज तो बताओ। हाँ बोलो बोलो। सरेंडर जरूरी है क्या? देखो ऐसा है, ये बैठे रहेंगे 2 दिन, क्या फायदा। और बिजनेस प्रीमिसेस में आ गए, चैन की बंसी बजाओ। भाई साहब की तबीयत तुम्हें पता है, कभी कभी खराब हो जाती है, कभी कभी दिखा देते खराब हो जाती है, कभी दिखा देते। तो कितने तक कर दे? अब ये तो तुम देख लो भाई साहब, मैं क्या बताऊं, बस ठीक ठाक देख लो, बाकी बाद में देख लेंगे। 50 तक कर दे, ठीक रहेगा। अरे नहीं संजय जी, क्या 50 की बातें हो रही हैं? भाई साहब देखो, बहुत है संजय जी, आप तो मैच्योर आदमी हो, इनको समझाओ। संजय जी ने बोला कि 50 से मैं फोन पे ज्यादा बात भी नहीं कर सकता, आपको पता है, तो लिमिटेशन है। चलो भाई साहब देख लो, कोई बात नहीं, आपस में बात कर लो। धन्यवाद साहब, दोबारा जरूरत पड़ेगी उठाऊंगा। ठीक है ठीक, थैंक यू। हाँ गुप्ता जी, ये सारे सामान का आपका जो टोटल बनता है तकरीबन 3.5 करोड़ बनता है। 50 बोल के बिल्कुल सर। तो ये खुद बोले। मुझे लगता है कि बॉसेस वुड भी हैप्पी अगर हम 3.5 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम अरे की टैक्स की बात करें गुप्ता जी से। हमें भी ले चलो सर। बुक्स में तो देख लीजिए, जो बुक्स में है उसको तो उसके बाद। गुप्ता जी आपकी बुक्स भी देख ली, बुक्स का बिजनेस भी देख लिया, आपकी प्रोफाइल भी देख ली। अभी वो BMW एक वो पोर्श गाड़ी खड़ी थी पड़ोसी के यहाँ, जो आपका भाई परसों चला रहा था। अब सारी बातें मत खुलवाओ, चुपचाप से चैन की बंसी हो जाओ। अग्रवाल साहब ने भी मैच्योर आदमी है, बड़े अच्छे तरीके से सजेस्ट किया है। और ये 3.5 करोड़ रुपए एडिशनल टैक्स दे दो हमें, हमारे बॉस हैप्पी होंगे। 10 करोड़ का डिस्क्लोजर दे दो, कहो तो मैं कंट्रोल रूम बात कर लेता हूँ। अरे औकात तो बढ़ जाएगी गुप्ता जी, ले दे के अभी तो टैक्स ही जमा कराना है और वाइट हो जाएगा आपका सारा।
भाई साहब एक से ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो फिर हमें इनके घर ही जाके खाना खाना पड़ेगा। साथ तो लेंगे नहीं तो भाई। हाँ तो एक कर सकते हैं सर हम। आपने सारा देख लिया, 60 लाख रुपए कैश है, 70 लाख रुपए, 1 करोड़ का आपका स्टॉक का वैल्यूएशन है। यार तू जवान आदमी है, मैं तेरे को चल के समझा के आता हूँ, चल मेरे साथ चल, मैं तेरे को बताता हूँ, आ जा। ये बहुत उद्यमी आदमी है। देख बात समझ, बड़े भाई तो धूप छाव विजय जी सरेंडर कर दो, सही रहेगा, आप भी चैन से जोड़े, हम भी चैन से जोड़े। तरक्की तेरी आपको तनख्वाह उतनी मिलेगी जब मैं करूं या नहीं। 3.5 बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, 3.25 कर लेते हैं। नहीं ये सब अच्छा एक काम करो, सारे कागज में 1.5 कर लो, इससे ज्यादा नहीं। तेरी शादी भी कर दी है, 10 करोड़ का रिश्ता आ जाएगा, उसी में बराबर हो जाएगा सारा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और तेरी शादी के अंदर स्कॉच पिएंगे आप, चिंता। चलो भाई साहब ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, करवा लो। कर रहा हूँ 3 तक ठीक है भाई। 3 का तो बात 1 करोड़ से 3 कैसे कर दिया? बात करके आ गई 3 तक क्या अच्छा हो गई, बात हो गई। हाँ बस कंक्लूड करें तो उसके बाद कि आप दोबारा कमा लोगे। कंट्रोल रूम में भी एक बार मैं परमिशन ले लेता हूँ। कंट्रोल रूम, यस, 3 करोड़ टैक्स, एडिशनल टैक्स, टोटल जो अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स मिले हैं वो तकरीबन उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 1.25 करोड़ है। तो आई थिंक द टीम हैज डन अ गुड वर्क। ओके, प्रोसीड, कंक्लूड इमीडिएटली। ओके ओके, लॉकर विल बी ट्रीटेड सेपरेटली। यस, लॉकर विल बी ट्रीटेड सेपरेटली। सब इसी में कर लो, सब सारा आप। चलिए आप लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए कि ये जो एडिशनल आप इनकम दे रहे हैं ये आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं, अपनी हैंडराइटिंग में लिखो। और लक्ष्य आप लिखना, इनकी अपनी हैंडराइटिंग में लिखो। I am surrendering amount of rupees 10 crore on account of discrepancies in cash, stock, 3 करोड़ है भैया, कहाँ नींद में? अरे 3 करोड़ एडिशनल टैक्स है भाई, 10 करोड़ इनका। 3 करोड़ टैक्स लोगे? 10 करोड़ का तेरा रिश्ता भी तो दिलवाएंगे भाई साहब। नोटपैड, लॉकर। अरे गुप्ता जी लिख दो ना, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, उसमें सब कवर हो जाता है, लिख दो। लिख दो, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल लिख दो। इंक्रीमेंटिंग मटेरियल अंग्रेजी है, आप लिख दो। आपत्तिजनक कागज। इसका क्या मतलब होता है? जिन कार्यों के ऊपर से आपको एडिशनल इनकम 2 नंबर की इनकम आपने की हुई है। लिख दो। पर सर ये बताना तो नहीं पड़ेगा ना अभी कैसे कमाए, कहाँ से? आपको अभी कुछ नहीं बताना, आप ये लिखो इन कागजों के बेस पर है, और कौन से एसएससी के हाथ में करोगे, कौन से साल में करोगे, वो आप अभी सिचुएशन में नहीं हो, वो आप बाद में बताओगे। ये लिख दो। ऑफिस आ जाइएगा उसके बाद। ठीक है, और 1-2 दिन में आपको हम अपनी झंडे वाला की चाय पिलाएंगे। ठीक है, चलो ये लो जी, कंक्लूड करो, सब कुछ अनेक्शराइज करो, पंचनामे का साइन कराओ। बताओ सर, आप घर पे कह रहे थे कि बाथरूम में बंद कर देंगे, डंडे से पिटाई। अरे गुप्ता जी, अगर ऐसा नहीं करे तो आप जैसी बड़ी मछली कहाँ से हमारे छोटे आदमियों के जंजाल में फंसे। ये तो सब हथकंडे होते हैं, ट्रेड्स होती है, ट्रेड्स ऑफ द बिजनेस होती है। चिंता मत करो, नंबर सब देंगे आप, एक ये वाला भी देंगे, सरकारी भी देंगे, दूसरा भी देंगे, सब देंगे। अब तो तुम्हारे साथ दोस्ती हो गई, तुमने हमें इज्जत दी, हमने आपको इज्जत दी। चलो सब कुछ अनेक्शराइज कर लो, पंचनामे की एक कॉपी दे दो, एक अनेक्शर्स की कॉपी दे दो, और सामान लो, कंक्लूड करते हैं। चलो चलो, गाड़ी वगैरह भी मंगवानी, कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। ओके कंट्रोल रूम, ओके, बाय, जॉब वेल डन, थैंक यू। कैश तो छोड़ के जाओगे। So other than locker, everything is complete. हाँ, कैश आपका एडवांस टैक्स में एडजस्ट कर लेंगे। आए हैं और हमारे पास ये स्टैंड ऑर्डर है। मैम आपके यहाँ एक लॉकर है 324, उस लॉकर विजय कुमार गुप्ता और उनकी वाइफ के नाम पे है, उसको हमें सर्च करना है। मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ सर? उस लॉकर को ऑपरेट करवाइए। ये ऐसे विजय गुप्ता जी का एम्प्लॉय आया हुआ है। सर बैठिए बैठिए, आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, अपना परिचय दीजिए। सर माई सेल्फ गौरव आहूजा, माई फादर नेम इज देवेंद्र कुमार आहूजा, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। ये सही असिस्टेंट है। आपके इस लॉकर में है क्या क्या? सर कुछ कैश होगा और प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे। अच्छा ठीक है, अभी आपकी स्टेटमेंट टेम्पररी सस्पेंड की जाती है और आफ्टर लॉकर के ऑपरेशन के बाद फिर से रिज्यूम की जाएगी। लक्ष्य, लॉकर ऑपरेट करवाओ। अपनी पावर अटॉर्नी भी दे दीजिएगा। आइए मैं आपको आइए। सर इसमें तो कुछ पेपर्स और कुछ ये ब्रीफकेस मिला है।
देखो सर क्या है सर ये तो किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो सिंगापुर में सिचुएटेड है। वाह भाई वाह, गुप्ता जी की सिंगापुर की प्रॉपर्टी। सर इसमें तो कैश रखा हुआ है 1,500। काउंट करो। सर ये 50 लाख रुपए कैश है, जो इसमें कुछ फॉरेन करेंसी भी रखी हुई है। वाह, गुप्ता जी ने तो इस बारे में बताया नहीं कुछ भी। चलिए आपकी स्टेटमेंट रिज्यूम की जाती है, बैठिए। इस कैश के सोर्स के बारे में बताइए। सर ये कुछ कैश मेजर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से निकाला गया है और बाकी थोड़ा बहुत अपना है। और इस प्रॉपर्टी के बारे में? सर इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई एविडेंस है आपके पास? सर एविडेंस तो नहीं है कोई, फिलहाल इस वक्त मैं आपको कोई एविडेंस नहीं दे पाऊंगा, बट बाद में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका मतलब हम चेंज कर लें इसको? सर लीगली जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो। लक्ष्य, इनको कैश को और प्रॉपर्टी को सीज कर लो। So with this, locker has ended, locker operation ended. प्रॉपर्टी के पेपर सीज किए जा सकते हैं या नहीं सीज किए जाते, इस पर डिस्प्यूट है। मेरी ओपिनियन में प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर नहीं सीज किए जा सकते, उनकी खाली फोटोकॉपी ले जाई जा सकती है, तो आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। विद दिस फ्रेंड, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वेट फॉर सम टाइम। The people behind the curtain, I would like to introduce them.